अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अनस रेहान आपका मेज़बान आज एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और आप सबको एक दफ़ा फिर अलखैर एच जी अलखैर एक एच जी ग्रुप के अंदर जो है वो एक एच जी ग्रुप के अंदर आपको खुश आमदीद। और आप सबका शुक्रिया कि आपने एक बार फिर हमें वक्त दिया। और आज का हमारा सेशन जो बेसिकली है वो एक शॉर्ट सेशन है जिसके अंदर जो है वो जो आपकी तरफ से सवालात आए हैं उनके जवाबात जो है वो इंशाल्लाह दिए जाएंगे। इंतजामी अमूर के हवाले से भी और जो फिक्री सवालात हैं उसके भी इंशाल्लाह जो है वो जवाबात दिए जाएंगे। तो अब बगैर किसी ताखीर के मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। इसके लिए मैं तो फिर तिलावत कलाम पाक आपके सामने जो है वो पेश करूंगा। और फिर इंशाल्लाह हम जो है अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك هم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. So I did not want to really get in the middle of there was ongoing discussion that was taking place. Um, and Of course, it was a very important discussion. And those were, of course, very important. But inshallah, with this session, I just really want to get to the just to the to the bottom of it, inshallah, and just share some things with you, as this was requested by the people of Hajj with Khair. This was a request made to me. So I did the same session with the group that I'm going with, inshallah. I'm going with Meaningful Hajj, and they just asked me to say a few words. I want to share with you something that I shared, which is the 555, which is 5 tips on how to mentally prepare yourself, 5 tips on how to physically prepare yourself, and how to
and 5 tips on how to spiritually prepare for yourself. So the very first thing is that as far as mentally preparing yourself, I'm just gonna don't want to take too much time. The very first thing is that when it comes to mentally preparing yourself for Hajj, is that you have to always renew your intention. You have to always ask yourself, why are you going for Hajj? If Hajj for you is just a faridah, you want to just get this off your shoulder, you want to fulfill an obligation, then you will complete your Hajj and it will be an obligation that will be uplifted from your responsibilities. However, the intention for Hajj should not just be that it is a faridah from Allah and I just want to fulfill my responsibility, but rather the mindset that has to be developed before going into Hajj is that yes, this is a mandatory action that I am fulfilling, but I want to use this as a platform. I want to use this as a springboard to change myself. I want to go to this place. I want to go through this experience so that I can change myself. If that is what your intention is, then that is exactly what Allah subhanahu wa ta'ala is going to give you. Because there's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where he says, "Innamal a'malu binniyat," that Allah, He will always give you based on whatever you do, Allah will give you based on your intention. So, just to give another example, many times when we go for salat during the day, when we go for dhuhr, when we go for asr, maghrib, isha, or even fajr, if our intention is that I'm just going to the masjid because I just have to go to the masjid and because I go to the masjid all the time, then that's exactly what you will get. But if we are going to the masjid with this intention that Allah says in the Quran that salat has this mechanism of defense, salat has this mechanism of protecting a person from engaging in illicit actions. It prevents a person from engaging in immorality, then that is inshallah what we will get from salat. But because many times we don't have that intention, that is why it becomes a big issue. So when it comes to Hajj, intention is a very important key aspect from a mental perspective. Number two is continuously learn about Hajj, whatever it is. This group, this company, Hajj with Khair, they're doing a lot of programs. They're doing a lot of Zoom sessions, and inshallah, they will be there on the ground with you. But continuously learn about Hajj and the monastic of Hajj. What are the rites of Hajj? Learn the spiritual aspect of Hajj. How did the Prophet ﷺ spend his days in Arafah, in Mina, in Muzdalifah? So, this is something that we need to learn about Hajj. Number three, mentally preparing yourself is that making sure that starting today, we try to observe patience when it comes to any moment that could trigger our anger. There are many things, especially with our family, especially when it comes to our kids, our wife perhaps, or our husband, that small things can trigger our anger. We try to make sure that we start practicing patience from now. And inshallah, at the end, I'll share with you something more about patience. But when it comes to patience, we have to start exercising that patience from now. Learn how to be patient because one of the most important things is in Hajj is you're going to deal with people, you're going to deal with unforeseeable circumstances, unexpected circumstances. So making sure that we are always observing patience starting from today. Number four is that starting from now, we always try to make sure that we put our trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Look, at the end of the day, we all, inshallah, are going for Hajj. Allah is taking us all the way there. Do not ever, do not let this idea or thought cross our mind that I'm coming all the way there. I don't know what will happen. I don't know what's going to happen. Will everything go smoothly or not? Things may not go so smoothly, but that's part of the whole process. You want to go for a Hajj that feels that you've done some hard work, you've gone through some sacrifice, you've been through some discomfort. That discomfort, that difficulty, those unforeseeable circumstances, that is what inshallah Allah will look at along with the other things also. But learning how to put your trust in Allah. Look, I've been for Hajj before, but I've been for Umrah many more times. I've had actually convert men and women. They have never ever been to Saudi, and they went for Umrah, and they were telling me that we're going to stay with you, we want to be with you. And I told them very clearly that look, once we get into the Haram, there's a very good chance, there's a very high probability that you are not going to be connected with me. I saw those same ladies a day later,
And I asked them, was everything okay? Because they got disconnected from me. They're like, yeah, yeah, we went, we saw a Malaysian man, a Malaysian woman. They told me what to do, and alhamdulillah, I got my Umrah done. The point is, you gotta put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. So this is number four when it comes to mental preparation. And the last thing is stay positive and stay determined. Always say, inshallah, Allah will take care of everything. Just have a positive demeanor, have a positive attitude. You don't want to go for Hajj and over there, the smallest issues happen, and you say, nah, you know what, this is not going to work out, this is going to happen, and and you're just becoming negative. And the people around you, though they may be optimistic, but they're looking at you, and they're listening to your negativity, and you're just spewing this negativity, and as a result they're picking up on this negativity. No, when we go there, yes, things are going to be a little difficult here and there, but inshallah, Allah will take care of everything. Having that kind of positive mindset is very, very crucial. So five things, once again, mentally: renew your intention. This is number one. Number two is learn about Hajj continuously. Number three is exercise patience on a daily basis. Number four, put your trust in Allah. And number five, remain positive. Now, as far as physically preparing yourself, quickly, I want to run through these things. Number one is improve on your fitness. That means that start walking on a daily basis. If you can go on, a 2 mile walk, 3 mile walk, try to get on the treadmill if you can, but have these long walks. Because once again, if you're not in the habit of walking and there you're starting to walk a lot, trust me, I know your leg muscles are going to get a good workout, but at the same time, then you are going to get tired very quickly. Also, in Hajj, you're going to need to have all, your physical strength as much as you can. Number two, when it comes to physical preparation for Hajj, is going through a health checkup. Go to your doctor, find out, are there any kind of concerns? Are there any kind of things that you should be worried about? Find out about that before you go. A lot of times doctors, they will even hand you over some extra medications in order to protect yourself. So that is why it is very crucial that you go to your doctor and who knows about your medical history, and you get a good checkup, and get their consultation before you go for Hajj. Number three is gather the essentials. Whatever you need to take for Hajj, start making preparations from now. Hajj, I mean, Dhul Hijjah, I was just checking this yesterday. It is expected that Dhul Hijjah will start on the 28th of May. Okay, it will start on the 28th of May. There's a very good chance, I could be wrong, but there's a good chance that it will start on the 28th of May. It will start the 28th or 29th. But nonetheless, we're not far away from the beginning days of the Hijjah, and you probably will be there probably by the end of that week. So that is why it is very crucial that do not let, when it comes to preparation, do not leave the preparation for the last second, but start preparation from now. Number four is that, and this is something that I've seen from some of the ulama, which I'm sharing with you, is that when it comes to, and this is not me being judgmental towards anyone, but if anyone has money or anyone has come across any kind of amount of money that has come from perhaps a mashkuk, or like a doubtful source, or perhaps an unlawful source, a prohibited source, then make sure that starting from now we try to have some, whatever money we're going to take with us for Hajj, we make sure that we take money that has come from halal sources, because the money that comes from halal sources, where we spend that, it will have a spiritual, and it will have a positive impact on us. So that is why it is extremely important that we keep this in mind, from a physical preparation, also and from a financial preparation. And lastly, one of the physical ways of preparing ourselves is that we plan and re-rest. Now, when it comes to your Hajj group, I was mentioning this to my own Hajj group of people, which is that when it comes to your people in your group, make sure you stick with the group. Okay. A lot of times people go there and they're like, oh, I've come here for Umrah many times, I've done Hajj before, and all that kind of stuff. And they start doing their own things. I'll tell you, the very first time I went for Hajj, I went with a group of young guys, and they were telling me the same thing. We were in Mina, and what happened was that we had just this was the 10th of the Hijjah, the day of Eid, and we had just pelt the shaitan. And they said to me that let's go through a different way. We can probably get to our camps quicker. And I went with them, and I did not stick with the group.
And there's a hadith of the Prophet ﷺ where he says, Yadullahi al jama'ah, that Allah sends His help on the jama'ah. When you stick with the group of people, then Allah's help is going to be with you. So, with that in mind, I did not go with the group. I actually went separated from the group and I learned my lesson. I got lost in Mina for 3 hours. I saw people in front of me collapsing due to heat. So that is why stick with your group. If your group says that we're going to go, especially on the 10th or 11th of the Hijjah, we're going to go to the Haram to perform our Tawaf al-Ifada or in our Sa'i and all that kind of stuff, you stick with your group. So please make sure you stick with your group. If you have never been for Hajj, I'm just letting you know from before, Hajj is very, very exhausting. You're not going to have long sleeps at night. You're going to have power naps throughout the entire day. You might be sitting and khalas, you might be putting your head down and you are going to be gone for probably 10, 15 minutes. There's going to be power naps throughout the entire day. That's the way Hajj usually works. So number one, once again, 5 things: how to physically prepare yourself, improve on your fitness, start walking more, get some health checkups with your general doctor. Number 3 is start gathering essentials early. Number 4 is halal earnings, halal savings, and number 5 is plan and rest. Now, the 5 ways to spiritually prepare for yourself. Number 1 is starting from now. Make a lot of istighfar to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Because istighfar opens the doors of Allah Azza wa Jal. If we have committed a sin and we don't know, and if this might be a means of our hindrance of going for Hajj, then from now we need to start making istighfar to Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, forgive me. Ya Allah, whatever shortcomings I've had, Ya Allah, forgive me. If there's any shortcomings that can be a means or a deterrent of me going for Hajj, Ya Allah, forgive me for my shortcomings. We start making istighfar now. Number 2 is start increasing in your worship from now. That means that start praying a little extra salawat, start reading a little extra Quran. Look, we are not, as human beings, we're not like a light switch. You cannot just go there into Mecca and Medina and just start, doing things unexpectedly. Yes, if that is the case, we might do a little more one day, but then we're going to go back to our old routine. So that is why we start increasing our worship of Allah subhanahu wa ta'ala, the different things, whether it's adhkar, whether it's Quran tilawah, whether it's spending time in the masjid. Try to do those kind of things starting now. Number 3 is study the deeper meanings of Hajj. Study the deeper meanings of what does it mean? Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. What does all that mean? You understand? It's like we are answering the call of Allah Azza wa Jal. This is a call that Allah has made, and we are coming. Is as if, think about this. Imagine if a king had called us and we're going to his courtyard and we are praising him as we are entering his courtyard. In the same way, Allah has called us and we are answering the call of Allah Azza wa Jal. So this is every single aspect of Hajj. Try to go deeper as much as you can in order to understand the nuances and in order to make that aspect of Hajj meaningful in our life. Number 4, start giving more sadaqah from now. Start doing more charity, start doing more good deeds from now. And number 5, from a spiritual perspective, we have to also think, and this might not be relevant now, but when you are in Hajj, you have to start thinking about this, that when I go back home, who am I going to be post Hajj? Look, brothers and sisters, let's be honest when I say this, okay? We're not here to pinpoint fingers at each other. This Hajj experience is a transformation for ourselves. We know where we are weak. We know where are we lacking. Some of us might be lacking in our salat. Some of us might be lacking in our akhlaq and adab. Some of us might be, we may have the sickness that when we go outside, we might put on a very good personality, but when we go back home, we treat our family members with dhulm and oppression, and we are so rude and disrespectful with them. Some of us, we cannot fast. Some of us, we cannot pick up the Quran and read it and so forth. We need to think, because you don't want to be in a situation where you go back home and your family says that, he went for Hajj and he came back and he's still the same. We don't want that kind of situation. We want our families to say that, oh, mashallah, he or she went for Hajj, they came back, and there's a transformation in their life. This is what Hajj is supposed to mean. This is how we see that Hajj has been accepted, or in Hajj, Hajj has had some kind of meaning in our life.
So that is why when we come back, there has to be some kind of a transformation. I understand society may be bad and we might become a byproduct again and be impacted by our society. But at least while we're in Hajj, we try to make sure that we think about this, that when I go back, I'm not doing this for the people, I'm doing this for Allah subhanahu wa ta'ala. I want to show Allah that, Ya Allah, you brought me here for Hajj. You brought me here for Hajj. I'm going to make I'm going to make a strong resolve. I'm going to make a strong and firm intention that I will use this Hajj to change. Because if Allah brought us here and we don't change, then Allah subhanahu wa ta'ala may say, I'm not saying he will say this for sure, but he may say that then what's the point, you know? And this might be a means of us not being invited for Hajj ever again. May Allah not make us from amongst that. May Allah not make us from amongst those kind of people. But that is why, brothers and sisters, please make sure that we understand Hajj has to be a means of transformation in our life. Finally, when we talked about patience, so once again, from a spiritual perspective, five things: istighfar, start increasing your ibadat, start understanding the deeper meanings of all the aspects of Hajj. Number four is start doing more good deeds and start giving more charity. And number five is have a post Hajj plan in place. Now, as far as when it comes to patience, inshallah, I'll finish on this that look, when it comes to Hajj, patience is going to be required. Okay, there's going to be patience over hardships. So, for example, when it comes to you go to the airport, there might be some hiccups over there. You might get there to Jeddah or to Medina. Let's just say, may Allah not make this happen, but let's just say your bags are coming in late, or you can't find your bags, and then you trying to get your family together. There's going to be ups and downs. This is what Hajj is all about. There are going to be some ups and downs. Now, the question is how much is it? We don't know that, but there will be ups and downs. So when we come across those ups and downs, we are patient. You understand? This is Allah's way of testing us. This is Allah's way of seeing that how determined are we. You understand? And so that is why when there's these kind of hiccups and so forth, even with and I'll tell you, please, when it comes to even your Hajj group members, the people who are in charge and so forth, they are working tirelessly around the clock. They want to make sure that this journey of yours is an amazing journey. That when you come back, you're saying positive things about your journey, you're positive things about your experience, and more importantly, they want you to say some positive things about them that they did a good job. Now, of course, they're human beings, brothers and sisters. They're human beings just like all of us. So please do not always keep on getting upset. So when there's difficulties and ups and downs in the Hajj and things do not go according to plan, don't worry. قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ. Be patient. Okay? Be patient. Number two is be patient with others. One of the most difficult things is to deal with others. You're going to see people, you're going to come across their ignorance, you're going to see how they do things, you're going to see how they, carry themselves and so forth. And you're going to come across many strangers in this group. Learning how to be patient with everyone. You understand? If there's a conflict that's growing between two people, you step in and you try to resolve the conflict. You try to put the fire out, okay? You don't try to grow the fire, you don't take sides, but you just try to make sure that when it comes to other people, you have to observe a lot of patience. Number three is observing patience with the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. This is sort of tied into number one when it comes to difficulties. Once again, we can make all of our plans, but at the end of the day, the best planner is Allah subhanahu wa ta'ala. So that is why understanding that if anything happens, it's happening from the qadr of Allah. This also means that, especially like if we get sick over there, if we get sick over there, may Allah keep us healthy and safe and sound. I mean, Rabbil Alameen. But let's just say you go there and you get sick, okay? For our sisters, many times, their monthly time may start. And this happened in the time of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, where this happened to our dear mother Aisha radiallahu ta'ala anha. And the Prophet ﷺ said to her that do not blame yourself. This is from the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is why anything that may happen, always remember this is from the will of Allah. Okay. And the will of Allah is based on Him and His decision alone. Okay. It has nothing to do with us. So that is why we say that if this is what Allah has done, and this is the circumstance He has created,
then I put my faith and I put my trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So these are some areas that we need to be extremely patient. Of course, we have to be patient in just the worship of Allah. We might be tired, okay, but of course we have to take care of all of our responsibilities of Hajj. So just keep these things in mind, inshallah. So there's 5 ways to physically prepare yourself. There's 5 ways to mentally prepare yourself, and there's 5 ways of spiritually preparing yourself. And then also when it comes to patience, there's patience when it comes to difficulties, unexpected circumstances. There's patience that is required when we are dealing with other people, working with other people. There's patience that is required when it comes to a matter of qadr. Something happens is from the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala, and there's patience that has to also be exercised when it comes to worshiping Allah. We might get tired, we might get exhausted, but no, inshallah, I'll keep on pushing myself. I'll come back home wherever I'm from. I'll come back home. I'll probably take a day or two to rest and catch up on my physical fatigue. But while we're there, we push ourselves to the limit, inshallah. So may Allah accept our Hajj. May Allah make this journey an easy one for all of us. May Allah take us safely, bring us back safely, and may Allah grant us many more opportunities. Ameen Rabbil Alameen, and may Allah give us the ability to use this Hajj as a way to bring transformation into our life. Ameen Rabbil Alameen. Wa sallallahu alayhi wa kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahim. Thank you very much, Imam Sahab. Thank you for your kind words and बहुत अच्छा आपने एक चीज को कवर किया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं वापस से जो है कंटिन्यू करता हूँ एंड इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा लो था, ड्रॉप हो रहा था, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस जो हमने शुरू में ले रहे थे वो ड्रॉप हो गए और पूरे क्लियर नहीं हुए. वहां से वापस स्टार्ट कर लेते हैं एंड स्टार्ट से मैं क्वेश्चंस को रिपीट करते हुए चलता हूं ताकि एक सेशन इसको हम जो हमारे पास आए हुए हैं को क्विकली कवर करते हैं. हमारे पास एक सवाल आया हुआ है सबसे पहले वैक्सीन का. वैक्सीनेशन के लिए जो है मैंडेटरी वैक्सीनेशन इज मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस सबने कंप्लीट करनी है. मेनिंजाइटिस कंप्लीट करने के लिए आप लोगों ने अपने मेनिंजाइटिस के शॉट्स कंप्लीट कर लिए होंगे. जो लोग पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं 18 मई को उनका शॉट्स कंप्लीट हो जाएंगे. 18 मई को भी प्रोग्राम में ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी और जो बाहर से आ रहे हैं वो बाहर से भी अपने शॉट्स कंप्लीट कर सकते हैं. तो शॉट्स कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी कर. जो पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए एक रिक्वायरमेंट पोलियो की भी है. वो उसी वैक्सीन शॉट्स के साथ उसका पोलियो भी कार्ड रेडी होगा और वो पोलियो शॉट्स भी यहीं, पोलियो ड्रॉप्स भी यहीं कंप्लीट है. जो बाहर से पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने साथ पोलियो के ड्रॉप्स या उसके सर्टिफिकेट्स रखें. कोई भी पैसेंजर हाजी 65 एज से अबव है तो उसको कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ रखना मैंडेटरी है. नेक्स्ट जो आया था हमारी मूवमेंट के बारे में है, कुछ लॉजिस्टिक्स के बारे में कि जी अजीजिया और हरम, जो मैंने पहले भी कवर किया था उसको रिपीट कर रहा हूँ. अजीजिया से हरम जाना, उम्रे के लिए अजीजिया में स्टे करते हुए हरम जाना. देखिए अरबिक की डेट्स 5th जिलहिज्जा से 14 जिलहिज्जा जो हज के मेन डे स्टार्ट हो जाते हैं, उसके लिए सारी शटल्स ट्रांसपोर्ट सऊदी गवर्नमेंट बंद कर देती है सिवाय प्राइवेट टैक्सीज के. प्राइवेट टैक्सीज हर वक्त अवेलेबल होती हैं. जिन लोगों को अराइवल हो रहा होता है अजीजिया में उनको फर्स्ट शटल फॉर उम्रा जो उनका होता है उसको हम वो अवेलेबल होता है. वो आपको हरम तक ड्रॉप कर देता है. उसकी परमिशन जो है एहराम वालों के लिए परमिशन होती है कि उनको हरम के पास ड्रॉप कर दिया जाए. और हरम के पास जो ये शटल्स ड्रॉप करती हैं वो बस स्टेशन तक लेके जाती हैं और बस स्टेशन में ड्रॉप करती हैं. वो बस स्टेशन में उसको ड्रॉप करती हैं और बस स्टेशन के अंदर जो है हरम का जो बस स्टेशन होता है वहां तक जाती हैं और वहां से हरम की बस स्टेशन की बसेस होती हैं जो हरम का टनल क्रॉस कराती हैं और हरम के जोन के अंदर आपको एंट्री करा देती हैं. इसी तरह अब नेक्स्ट जो होता है कि जी तवाफ़ ज़ियारा है, तवाफ़ विदा है, ये दोनों साथ कर सकते हैं. एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि तवाफ़ ज़ियारा के लिए जो है वो कौन से दिन अच्छे हैं. तवाफ़ ज़ियारा जो है वो 10th ज़िलहिज्जा से स्टार्ट हो जाता है. तो 10th ज़िलहिज्जा को हम रात को यूजुअली प्रेफर करते हैं कि 10th ज़िलहिज्जा की नाइट जो है वो हम रात को इशा के बाद तवाफ़ ज़ियारा करते हैं. अगर 10th को नहीं करें तो हम 11th को भी कर सकते हैं. 11th का हमारे पास फुल डे होता है, हम सुबह से रात तक कर सकते हैं. और 12th को हम सनसेट से पहले पहले हमें कंप्लीट करना होता है.
तो अच्छे टाइमिंग्स होते हैं, 10 जिलहिज्जा की रात को और 11 जिलहिज्जा की रात को। तो रात के टाइमिंग में रश थोड़ा कम होता है, तो हम यही सजेस्ट करते हैं। इसके लिए जो प्लान्स होंगे, लास्ट फाइनल प्लान्स जो हमारे चलते रहेंगे, जब हम अपने सेशंस तक पहुंचेंगे तो हम आपको शेड्यूल देंगे कि जी कौन से टाइमिंग्स अच्छे हैं। इनके लिए शटल जो है वो यूजली नहीं होती, बट अगर वहां पे हमें वो अलाउ करते हैं, गवर्नमेंट ट्रैक्स ओपन होते हैं, बसेस को अलाउ कर रहे होते हैं, तो उनको अगेन ये बस स्टेशन तक, जो हरम के बस स्टेशन हैं, जो उन्होंने हरम का स्टेशन बनाया हुआ होता है जहाँ पे ड्रॉप ऑफ स्टेशन होता है, वहां तक जाती है, और वहां से हरम की शटल जो है वो हरम के अंदर फिर आपको ले जाती हैं और हरम के जोन के अंदर हरम के करीब छोड़ देती हैं। तो ये सिचुएशन जो है, ये लास्ट मिनट सिचुएशंस होती हैं, ये लास्ट डे तक डिसाइड हो रही होती हैं, तो इनको उसी वक्त हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और आपके एसपीओस जो हैं वो कोऑर्डिनेटर्स वो इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। तो वापस आते हुए आप इसको खुद आएंगे। वापस आने का क्या तरीका है, और 10 जिलहिज्जा को तवाफ ज़ियारा के बाद या 11 जिलहिज्जा को तवाफ ज़ियारत के बाद वापस कैसे आना है, ये नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको बता रहे होंगे कि टैक्सी से कहाँ आना है और कहाँ नहीं जाना। तवाफ विदा बिल्कुल आप उसके साथ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आपकी फ्लाइट इमीडिएट है, लाइक 13 और 14 जिलहिज्जा को आपकी मूवमेंट है वापसी की, 9 जून को मूवमेंट है। अगर 10 जून की मूवमेंट है तो आपके पास फिर टाइम है कि आप 9 जून को दोबारा जाके हरम में तवाफ विदा अलग से भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, क्योंकि तवाफ ज़ियारा करने के बाद एक तवाफ और एक सही तवाफ ज़ियारा के लिए होती है, और फिर तवाफ विदा उसके लिए अलग होता है। इन दोनों को कंबाइन करना मना नहीं है, कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। आपकी एनर्जी के ऊपर है, आपकी उस वक्त की कंडीशन के ऊपर है कि आपके लिए कितना आसान है। मक्का की ज़ियारत जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में मक्का की ज़ियारत नहीं इंक्लूड होती, मदीना की ज़ियारत इंक्लूड है। मदीना की ज़ियारत दो किस्म की है। एक मदीना की ज़ियारत जो है वो होती है नॉर्मली जो रियाजुल जन्ना की है, और दूसरी मदीना की ज़ियारत जो बाहर जाके ओहद है, ग़ज़वा खंदक जहाँ हुई है वो जगह को विजिट करते हैं, सबा मसाजिद हैं, मस्जिद कुबा है। ये जो ज़ियारत हैं इनका शेड्यूल आप जब हम मदीना अराइव करेंगे तो यूजुअली उसका फजर के बाद बस ग्रुप के मूवमेंट में पूरा होता है। ग्रुप किस शक्ल में आपसे ये बसेस जो हैं आपको सुबह जो है वो लेके जाएंगी, आपके कोऑर्डिनेटर्स, आपके ग्रुप्स आपको अनाउंस कर देंगे शेड्यूल कि कब बसेस कौन से कहाँ से पिकअप कर रही हैं और कितने बजे जा रही हैं। तो आपने वो शेड्यूल्स को देखते हुए अपनी चीज़ों को मैनेज करना होगा। और उसमें जो है आपके पास मदीना में यूजुअली हमारे जो ग्रुप्स हैं उनके स्टे 2 से 3 दिन है। कुछ ग्रुप्स के 3 दिन है, ज्यादातर ग्रुप्स के 2 दिन है, तो उसमें टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो उस जब नेक्स्ट डे उसका शेड्यूल आ रहा होगा तो आपके अराइवल पे आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि एग्जैक्टली जो है वो कौन सा टाइम स्लॉट के ऊपर जो है वो बसेस जा रही हैं फॉर ज़ियारत। आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं, और वो उसके लिए ये भी जरूरी है कि जी हमारी जो रियाजुल जन्नत की ज़ियारत है उसके टाइम स्लॉट्स आप सब लोगों ने अपने अपने कवर कर लिए हैं। तो हमने आपको लास्ट वीक भी बता दिया था कि नुसुक की ऐप के ऊपर टाइम स्लॉट्स आ रहे हैं, आप प्लीज अपने टाइम स्लॉट्स बुक कर लें। ग्रुप टाइम स्लॉट्स अभी तक उन्होंने ओपन नहीं किए हैं। इस साल की उनकी क्या पॉलिसी होती है कि ग्रुप टाइम स्लॉट्स वो ओपन करते हैं या नहीं। अगर नुसुक की ऐप के ऊपर इंडिविजुअल है, कुछ लोगों का सवाल ये है कि हम कौन से पासपोर्ट पे करें। हम लास्ट ईयर जो है वो अपने यूएस पासपोर्ट पे भी रजिस्टर किया हुआ था, हम उम्रे पे गए थे। कोई इशू नहीं है, अगर आपको कोई भी फॉरेन पासपोर्ट है, आपने लास्ट ईयर भी किया, तो आप उसको भी अगर टाइम स्लॉट अभी उस पर आपको दे रहे हैं तो आप उस पर भी ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आप एक नई आईडी बनाएंगे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे है उस पर भी आप कर सकते हैं। टाइम स्लॉट आपका लॉक होगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर ग्रुप के स्लॉट्स उन्होंने हमें अलाउ किए और वापस से ओपन कर दिए तो हम उसको जो है वो आपके लिए वापस से जो है वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिर हो सकता है कि वो ग्रुप स्लॉट्स के बाद एक स्लॉट कैंसिल कर दें और ये जो है आपका इंडिविजुअल कैंसिल कर दें जो सुपरसीड कर जाए ग्रुप स्लॉट, डिपेंडिंग कि जी उसकी ओपनिंग होती है या उसकी पॉलिसी इस साल अभी तक आती है या नहीं। अभी तक वो स्टार्ट नहीं। इसी तरह मिना की मूवमेंट्स और मिना के अंदर बैगेज और उसकी पैकिंग के बारे में। मिना हम लोग बेसिकली 8 जिलहिज्जा की मॉर्निंग को जाते हैं। इसमें जो 3-4 सवाल है मैं उनको इकट्ठा करके जो है वो मिक्स करके कंबाइन करके उनका जो है मैं इसके अंदर आंसर हो जाएगा। एक सवाल ये था कि जी मिना की मूवमेंट कब होगी, मिना से अराफात की मूवमेंट कब है। इसी तरह ये था कि जी हम वहां पे लगेज हैंड कैरी लेके जा सकते हैं या हैंड कैरी लेके नहीं जा सकते, कितना लगेज लेके जाएंगे। और तीसरा सवाल ये था कि जी मुजल्फा के अंदर हमें स्लीपिंग बैग्स मिलेंगे या नहीं। तो ये चारों का जो है वो एक चारों जो क्वेश्चंस हैं इनको हमने कंबाइन कर लिया। मिना की मूवमेंट 8 जिलहिज्जा की मॉर्निंग होगी,
8 ज़िलहिज्जा अभी करंटली जो है वो 4th ऑफ जून को है। 4th जून की मॉर्निंग हमारी जो है इंशाल्लाह 8 ज़िलहिज्जा को मिना की मूवमेंट होगी। बसेस आपको पिक करेंगी, आपकी अकोमोडेशन से आपको मिना लेके जाएंगी, आपके कैंप के पास उतारेंगी, आप मिना के कैंप तक जाएंगे। आपका वहां पे लंच और डिनर का अरेंजमेंट होगा। मीनवाइल नमाजों की अरेंजमेंट्स होंगी अपने अपने कैंप में। और उस रात को डिनर के बाद की हमारी मूवमेंट होती है। डिनर के बाद हमारी मूवमेंट होगी फॉर अराफात। हमारे स्लॉट्स यूजली डिनर के बाद कौन से टाइम पे एग्जैक्ट स्लॉट्स आते हैं वो मौलवीन हमें बता देते हैं। हम आपको अपडेट करके रखते हैं कि जी हमारे ये फाइनल स्लॉट्स आ गए हैं। और फिर ग्रुप वाइज अलग अलग ग्रुप्स के स्लॉट्स आ रहे होते हैं। थोड़े थोड़े हमने ग्रुप्स उनको कह रहे हैं जो बसेस में स्प्लिट हुए हुए हैं। डिफरेंट बसेस होंगी, हर बस का एक नंबर एलोकेट हो जाता है जो आपको वहां पे आपका मालूम चल जाएगा कि जी आपका जो है आइडेंटिफिकेशन है वो बस नंबर किस आइडेंटिफिकेशन से हो रहा है, ताकि आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। बसेस के ऊपर पेस्ट होता है तो वो भी आपको मालूम चल जाएगा कि ये बसेस हमारी इस तरह है। रात को अरफात की मूवमेंट होती है। अरफात में हम अर्ली मॉर्निंग किसी टाइम पहुंच रहे होते हैं, मिडनाइट और अर्ली मॉर्निंग के दरमियान। वहां पे हम रेस्ट करते हैं। अरफात का टाइम स्टार्ट होता है जोहर से, विच इज अबाउट 12 नून। तो 12 नून से लेके सनसेट तक जो है वो जवाल से लेके जो है वो हमारा टाइम शुरू होके सनसेट तक रहता है। और 7 बजे फिर हमारी वहां से मूवमेंट होती है फॉर मुजल्फा। मुजल्फा हम बसेस में मूव करते हैं और बसेस जो है उनको टाइम लगता है अबाउट 4 आवर्स टू 5 आवर्स लगते हैं जो बसेस आपको वहां पे पहुंचाती हैं मुजल्फा। बसेस रोड में काफी कंजेशन होता है, थोड़े थोड़े करके जो है वो ट्रैक्स खुल रहे होते हैं। मुजल्फा के अंदर जब हम पहुंचते हैं तो मुजल्फा में जो है वो बसेस हमें रोड साइड पे मुजल्फा की बाउंड्री के अंदर आके उतार देती हैं। वो रोड साइड के ऊपर जो फुटपाथ्स होते हैं, रोड साइड्स होती हैं, कुछ बसेस पार्क होती हैं, बाकी बसेस को पार्क नहीं होने देते। जो बसेस पार्क होती हैं उनके भी जो है वो इंजन ऑफ नहीं किए हुए होते हैं, तो फ्यूम्स आ रहे होते हैं। नीचे जो है वो थोड़ा सा बजरी टाइप पत्थर वत्थर पड़े होते हैं। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो होता है। उस हवाले से हमें अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। हमें स्लीपिंग बैग्स जो है वो वहां पे मिलेंगे। स्लीपिंग बैग्स जो हैं वो पतले स्लीपिंग बैग्स होते हैं। उसके नीचे अगर किसी को एक्स्ट्रा अपने लिए कोई चटाई रखनी हो तो वो वहां सऊदी अरब से डिस्पोजेबल चटाई खरीद सकता है। कैरी करके लाने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब में बहुत आराम से डिस्पोजेबल चटाई मिल रही है अगर किसी को एक्स्ट्रा रखनी है। स्लीपिंग बैग जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं और पतले मैट होते हैं, तो उसके नीचे भी अगर कभी कोई पतरी या पत्थर वगैरह आ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, लगता है, तो थोड़ा सा उसको अपने आप का एरिया को क्लियर करना जरूरी होता है। टॉयलेट्स जो है वो मिना में हमारे कैंप जो होता है ब्लॉक उसके अंदर है। इसी तरह अरफात के अंदर भी जो है वो करीब करीब होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते। छोटी सी बॉक्स एक अपने कंपाउंड के अंदर होते हैं। वेरेज अरब मुजल्फा के अंदर ऐसा नहीं होता। मुजल्फा के अंदर जो है वो डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, हमारी कहाँ पार्किंग हुई है या कहाँ बस ने हमें ड्रॉप किया है और उसकी डिस्टेंस के साथ होते हैं। तो उस वो पब्लिक वॉशरूम, टोटल पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं जो मिना और अराफात के होते हैं। वो कैंप एरिया जो हमारा पूरा ब्लॉक होता है उस ब्लॉक के लिए डेडिकेटेड होते हैं। वेरेज मुजल्फा के जो है वो रोड साइड पे बने हुए होते हैं, वो पब्लिक एरिया, पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं, लाइंस लगी होती हैं और सफाई का काफी उसमें इश्यूज रहे। तो उसको यूज करने भी जाना हो तो आपको अपनी मार्किंग करके जाना होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी नंबर्स या चीजें कहीं पे भी ऐसे नहीं होते या कोई भी इस तरह आप कहें कि निशानी नहीं होती कि आपको वापस आने में आसानी हो। आप अपने साथ मिना जाते वक्त बिल्कुल हैंड कैरी नहीं रखेंगे। हैंड कैरी मीन ट्रॉली बैग नहीं रखेंगे। सिर्फ बैक पैक्स जो आपको दिए हैं वो बैक पैक्स आप अपने साथ रखेंगे। बैकपैक के अंदर क्या चीजें, एसेंशियल आइटम्स क्या होंगे, बुकलेट को प्लीज पढ़ें। बुकलेट कल तक रेडी आपको अवेलेबल होगी, आपको ईमेल भी हो जाएगी, उसका पीडीएफ वर्जन, उसका ई लिंक आपको हो जाएगा और इसको आप प्रिंट करा लें, इसको आप पढ़ लें। इसमें जो आज हमारे पास जितने भी हमने क्वेश्चंस कंपाइल किए, 85% क्वेश्चंस जो है वो उसके अंदर ऑलरेडी आंसर्ड हैं, उसके अंदर कवर्ड हैं, अगर हम उस बुकलेट को अच्छी तरीके से पढ़ लें। मेडिसिन के ऊपर भी लोगों का क्वेश्चन था कि जी हमें कौन सी मेडिसिन जो है वो रखनी है और कौन सी मेडिसिन नहीं रखनी। देखें, जो आपकी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि एसेंशियल मेडिसिन हैं, ओवर द काउंटर नहीं मिलती, वो मेडिसिन और वो कोई ना कोई आपकी
प्रिस्क्राइब्ड होती हैं वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ऐसी जो आपको सीरियस मेडिसिन हो उनको जरूर आप जो है वो सील करा लें, पैक कर लें, उनकी प्रिस्क्रिप्शन रख लें। जो ओवर काउंटर मिल जाती हैं कि जेनरिक किसी और जेनरिक नेम से मिल जाती हैं जो आपके डेली यूज की भी नहीं है, उनके लिए कोई इशू नहीं है। वो आप अपने नॉर्मल अपने हैंड कैरी अपने बैक पैक में जिस तरह रखनी है वो रख सकते हैं। और वहाँ पे अवेलेबल भी हो जाती हैं, बहुत सारी फार्मेसीज हैं, बहुत इजीली मिल जाती हैं जो आपकी कोई इन केस अगर आपको चाहिए हो तो। और बाकी कुछ मेडिकल यूनिट्स जहाँ जहाँ करीब में मेडिकल यूनिट होंगे जो ऑपरेट कर रहे होते हैं उनका भी हमने उसमें जिक्र कर दिया है कि वो कौन कौन से यूनिट्स कहाँ कहाँ होते हैं, अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो आप कैसे उनको यूज कर सकते हैं। मुजल्फा से वॉक करने का एक सवाल है कि जी हम मुजल्फा से जो है ना अरफ वॉक कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, मुजल्फा से मिना वॉक करना चाहें तो आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से बिल्कुल भी इस समझें कि ना रेकमेंड करते हैं ना सजेस्ट करते हैं। और हम ये कहते हैं कि जी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और वेट करें, क्योंकि मुजल्फा में आपको बसेस छोड़ के जाएंगी सुबह। आप फजर के बाद जो है असल मुजल्फा का टाइम फजर के बाद है कि जी आपने थोड़ी देर वकूफ किया, दुआ की, एंड जब सनराइज हो जाता है तो लोगों की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। वॉक करने वाले एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो वॉक करके मूव करता है। और फिर 2 घंटे बाद बसेस का ट्रैक खुलता है और पीछे से बसेस आनी शुरू होती हैं, और हमारी बसेस उस पे ट्रैक पे जो है वो क्यू में होती हैं। जैसे ही वो खुलता है तो हमारी बसेस आना शुरू होती हैं, थोड़ी थोड़ी करके आती हैं। इसमें टाइम लगता है और वो बसेस आपको लेके हम मिना कोशिश करते हैं कि मिना स्किप करते हुए अपने अजीजिया की अकोमोडेशन पे आ जाएं। और अकोमोडेशन से आके अजीजिया का जो बस स्टेशन है सेकंड फ्लोर पे जो जमरात को लेकर कनेक्ट करता है, वहां से हम रमी करें। वो हमारी बिल्कुल अकोमोडेशन से दोनों अकोमोडेशन से बिल्कुल करीब है। तो वहां से हम जब करते हैं तो हमें एडवांटेज ये होता है कि हम अपनी अकोमोडेशन से कनेक्टेड होते हैं। वहां से हम वॉशरूम यूज करना है तो अपने वहाँ वो भी कर सकते हैं, और रेस्ट करना है तो रेस्ट करके भी जा सकते हैं। और अगर कोई डिलेज है या वहां पे रश ज्यादा हो गया है जमरात स्टेशन की तरफ, तो हमें इंटीमेशन आ जाती हैं, न्यूज आ रही होती हैं, टिकट्स आते हुए होते हैं, तो हम उनको आप लोगों तक पास ऑन करते हैं और आपसे कहते हैं कि वेट कर लें, 1 घंटे बाद चले जाएं। अदरवाइज अगर आपने जो लोग मुजल्फा से ऑल द वे वॉक करने को कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा नंबर कर रहा होता है, लेकिन जो लास्ट ईयर भी सबसे ज्यादा हीट स्ट्रोक्स हुए हैं वो इसी पैसेज में हुए हैं। क्यों कि सुबह सुबह एहराम में ऑलरेडी आप 2 दिन से थके हुए आ रहे होते हैं, और वहां पे बहुत प्रेशर होता है, आपकी एनर्जी लेवल्स ऐसे नहीं होते। आपका सिर्फ एक एम हो रहा होता है कि मैं जल्दी से शैतान को मारूंगा, कुर्बानी करके अपना एहराम खोल लूंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि देखें इसीलिए अगर हम अपनी अकोमोडेशन से आके करते हैं तो हमें एडवांटेज हो जाता है कि हमारे पास वहाँ ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा रेस्ट कर भी सकते हैं, फ्रेश भी हो सकते हैं, वॉशरूम भी यूज कर सकते हैं, और ब्रेकफास्ट भी है, हम थोड़े से अपने ब्रेकफास्ट भी करके जा सकते हैं। तो हमें जो एडवांटेजेस हैं उनको यूज करना चाहिए, उनको लेना चाहिए, अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहिए। टाइम शाम तक है, एहराम जब आपने इतनी देर बांध लिया है तो थोड़ी देर ही रह गई है, उसको थोड़ा सा पेशेंटली चलें तो इंशाल्लाह आप फायदा होगा। इसी तरह आप लोगों को आपकी ईमेल्स के ऊपर मुख्तलिफ सर्कुलर्स आते जा रहे हैं, और आई थिंक लास्ट वीक से ये थोड़ी सी जो है ये कम्युनिकेशन बढ़ गई है, और आपको हर ऑल्टरनेट डे में एक सर्कुलर आ रहा होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सर्कुलर जो है रोज हमें कोई ना कोई मटेरियल आ रहा है। ये मटेरियल बेसिकली जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली आपकी आपकी प्लानिंग के लिए, आपकी पैकिंग के लिए, ये इन सब चीजों को सामने रखते हुए बनाया है। और यही आप लोगों के सवाल भी हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। लगेज कार्ड्स को कैसे हम प्रिंट करें, ये सवाल ओवरसीज जो बाहर है हमारे उनकी तरफ से आ रहा था कि लगेज कार्ड्स और बैगेज को हम कैसे मैनेज करेंगे। बहुत इजी है। लगेज कार्ड जो है आपका जो है, आपको लगेज कार्ड ईमेल पे आ जाएगा आपका, और वो आएगा आपको अभी 20 मई के बाद, एंड इंस्ट्रक्शंस उसकी आ चुकी हैं आपको ऑलरेडी ईमेल पे। इसी तरह आपकी ऐप के ऊपर लगेज कार्ड की पिक्चर आ रही होगी जो आपके नाम से प्रिंटेड होगा, जो डिजाइन में। आप सिंपली उस कार्ड को कलर प्रिंट ले लें, उसको जो है फोल्ड कर लें और उसको प्लास्टिक कोट करवा लें, और प्लास्टिक कोट करवा के आप अपने बैग के साथ अटैच करा दें यही कार्ड, या वो कार्ड प्लास्टिक के ऊपर हमने उसको प्रिंट करवा देते हैं प्लास्टिक पे, आप उसका जो है कलर प्रिंट ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी चलेगा, कोई इतना इशू नहीं है। कलर प्रिंट से आइडेंटिफिकेशन और दूर से आसान हो जाती है। बाकी दोनों सिचुएशन में बहुत इजी है, नॉर्मल प्रिंट आउट लेके उसको कट कर लो। बाकी जो आपके जो हैंड कैरीज होंगे, जो भी आप लगेज जब पैक कर रहे होंगे, वैल्यूएबल्स वगैरह जो हैं उनको कोशिश करें कि वो आप अपने हैंड कैरी में रखें, और कैश, ज्वेलरी, इस तरह के आइटम जो सेंसिटिव आइटम्स हो, जो ताकि वो मेन लगेज में ना हो, आगे पीछे हो जाए तो उसको प्रॉब्लम। इसके बाद हज की कुर्बानी
हज की कुर्बानी के बारे में भी एक सर्कुलर जो है वो आपको ईमेल कर दिया है। कुर्बानी आप लोगों ने जो बुक कराई हुई है उसके दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस मैन्युअली होता है, वो स्लिप आपको आपके लास्ट पैक में मिल जाएगी अराइवल पे, और दूसरी उसके जो है आप उसको डिजिटली कर सकते हैं। एक लिंक भी आ जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ऐप जो है ऐप पे जाएंगे तो वहां पे भी अवेलेबल है। टैब ओपन हो जाएगा 10th जिलहिज्जा की मॉर्निंग, रमी करने के बाद, रमी इज मैंडेटरी, रमी डे 1 की रमी शैतान फर्स्ट बड़े शैतान को बाहर के ही कर सकते हैं। तो वो डे 1 की फर्स्ट रमी करने के बाद आप उस पर टैब को क्लिक कर देंगे तो इंशाल्लाह वो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक सवाल है कि जी रमी के शेड्यूल, व्हाट इज द शेड्यूल फॉर रमी स्टोनिंग। स्टोनिंग रमी जो है वो 3 दिन की जाती है। 10 जिलहिज्जा को सिर्फ बड़े शैतान की जाएगी, सिंगल शैतान होगा। सेकंड 11 जिलहिज्जा को जो है वो तीनों शैतान की होगी, और 12 जिलहिज्जा को तीनों शैतान की होगी। अच्छा जी, तीनों को होगी। और इनके टाइमिंग्स जो है ना वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम मिना में हैं तो मिना से मूवमेंट के टाइमिंग्स अलग हैं। अगर हम अजीजिया में अपने अकोमोडेशन के करीब हुए या अजीजिया में हुए और अजीजिया स्टेशन से आ रहे हुए, मक्का में हुए और अजीजिया स्टेशन के थ्रू आ रहे होंगे तो उसके टाइमिंग्स अलग हैं। वो चार्ट में क्लियरली मेंशन है कि वो टाइमिंग्स क्या होंगे और उनको कैसे फॉलो करना है। और उन टाइमिंग, ये भी कोई सर्टन टाइमिंग्स नहीं है, हो सकता है इनके अंदर भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है, और वो हमें रियल टाइम जो है उस वक्त हमें चीजें आ रही होती हैं तो वो हम उस वक्त आपको अपडेट करते जाएंगे। सीक्वेंस 10th जिलहिज्जा का अगेन फॉलो करना जरूरी है। रमी करेंगे, रमी के बाद कुर्बानी होती है, और कुर्बानी के बाद जो है हम 10th की रात को भी जा सकते हैं, 11th को भी जा सकते हैं तवाफ ज़ियारा के। तवाफ ज़ियारा में तवाफ और एक सवाल और था कि हम कौन सा हज कर रहे होते हैं। 3 किस्म के हज हैं, हज तमत्तो, हज किरान और हज इफराद। यूजली यूजली सॉरी यूजली जो हमारी मूवमेंट है और जो सारा मेजोरिटी है वो हज तमत्तो कर रही होती है, क्योंकि मदीना से आ रही है तो पहले हज तमत्तो उम्रे की नियत से आते हैं, उम्रे का एहराम पहनते हैं। और उम्रे का एहराम कहाँ से पहनेंगे ये भी सवाल था। और उम्रे का एहराम पहनते हैं, उम्रा कंप्लीट करते हैं, उम्रा कंप्लीट करने के बाद जो है वो जब हज के दिन, हज 8 जिलहिज्जा को हज के लिए जा रहे होते हैं तो फिर हज का एहराम पहनते हैं, और वो एहराम हमें अपनी ही अकोमोडेशन से पहनना होता है हज का। उम्रे का एहराम अगर कोई बाहर से पाकिस्तान से डायरेक्ट जद्दा जा रहा है, मदीना से आ रहा है, उसको जो है वो मीकात से पहले कवर करना है। मीकात जो है जब हम जद्दा लैंड कर रहे होते हैं या मदीना से निकलते हैं तो फौरन ही मीकात आ जाती है, तो इमीडिएट आ जाती है। तो हमें मदीना से अगर हम निकल के उम्रे के लिए जा रहे हैं तो हम मदीना में ही अपनी अकोमोडेशन पे उसको पहन लें, और वहीं से जो है हम तलबिया पढ़ के नियत करके जाएं। और अगर हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, दुबई से कनेक्ट कर रहे हैं, कोई और फ्लाइट से जो आ रहे हैं दुबई से और पाकिस्तान से जो जद्दा लैंड कर रही है हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स, वो लोग एहराम जो है अब या तो अपने अकोमोडेशन से घर से पहन के आ सकते हैं, लास्ट एयरपोर्ट से पहन सकते हैं। लेट्स से अगर किसी का दुबई एयरपोर्ट है, कराची है, जहाज में इतना कंफर्टेबल नहीं होता, हम लोग इतने यूज टू नहीं होते, तो जहाज में इतना कंफर्टेबल, इतना इजी नहीं होता कि जी वहां पे मैनेज कर सकते हैं, और वहां इतनी जगह नहीं होती। तो अच्छा यही है कि पहले पे उसको पहन लें, और हाँ नियत जरूर जहाज में करें। जैसे ही जहाज में बैठ जाए और जहाज जो है टेक ऑफ करता है तो हम नियत कर लें उसके बाद फिर ताकि मिकात तो लास्ट 35-40 मिनट्स पहले मीकात का पॉइंट आता है और वो अनाउंस करते हैं, लेकिन जब जहाज टेक ऑफ कर ले तो फिर हम उसको नियत कर लें। और लेकिन एहराम पहन के आएंगे तो हमारे लिए आसानी है चीज़ें हमारे लिए, ताकि हमें वहाँ पे एयरपोर्ट के वॉशरूम्स को मैनेज करना आसान हो जाता है। वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज कभी कभी नहीं होती कि उन वहाँ पे पहनना आसान हो। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि जी मदीना का जो है वो परमिट और मदीना की जियारत मैंने आपको बताया। परमिट्स आपने जो है वो नुसुक पे अपने परमिट्स लेने हैं। अगर परमिट नहीं होगा तो लास्ट मिनट परमिट्स वहाँ पे नहीं मिलते, ये यूजली हमने उम्रे पे हज पे यही प्रैक्टिस देखी है। तो परमिट्स को कंप्लीट करना, टाइमली उसको लेना, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रुप परमिट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वो एडिशनल हो जाएगा या वो सुपरसीड कर जाएगा, ये इनको एक अलग चीज। सऊदी सिम के बारे में सवाल है जी, सऊदी सिम एंड ई सिम ई सिम एंड सऊदी सिम। जी मोबाइल की सिम और एक सवाल ये भी था, मैं इसको भी ले लूं कि वो नेक्स्ट क्या हमें ग्रुप की तरफ से डेटा सिम्स मिलेंगी या नहीं। ठीक है जी, सिम्स आपने खुद प्रोक्योर करनी है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग सिम है, जो आप पाकिस्तान में या आउटसाइड पाकिस्तान जहां पे भी अपनी यूज कर रहे हैं, उसका
इतना डेटा ऑन करवा के आए, रोमिंग डेटा, कि वो आपके पास 2 से 3 डेज आपके कवर कर सके। क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे सिम्स नहीं मिलती, कभी उनको एक्टिव नहीं होती, तो आपको एयरपोर्ट से पहुंच के अपनी अकोमोडेशन तक पहुंचने के लिए फर्स्ट 24 आवर्स आपके पास बैकअप होना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ मोबाइल कंपनीज ने डील्स निकाली हुई हैं कि जी वो हच सिम्स दे रहे हैं, डेटा सिम्स, और वो डेटा सिम जो है वो एक्टिवेटेड होती है जैसे ही आप लैंड करते हैं। इंटरनेशनली भी ई सिम्स कुछ ऐसी आ गई हैं कि आप लैंड करें तो आपके पास वो एक्टिवेटेड होती हैं। तो उनको एज अ बैकअप फर्स्ट 24-48 आवर्स के लिए रखें, अच्छी बात है। फिर नेटवर्क, लोकल नेटवर्क के लिए आई वुड सजेस्ट कि जी बिल्कुल हमें मोबाइल सिम जो है वो लोकली जो मिल रही होती है वो लेनी चाहिए। मोबाइली नेटवर्क है और सावा एसटीसी नेटवर्क है, तो इन दोनों नेटवर्क्स की सिम्स बहुत अच्छा कवर कर रही होती हैं। इन दोनों की सिम में से किसी की भी सिम ले लें, एंड कोशिश करें 10 GB का मिनिमम पैकेज लें। एंड 10 GB इसलिए क्योंकि आपको जो है वो अराफात में, मिना में, और हर वक्त अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी टीम के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ, और डिफरेंट चीज़ों के लिए कनेक्टिविटी चाहिए होती है। तो वहाँ पे लोकल वाईफाई होटल्स के या अकोमोडेशन अजीजिया के इतने अच्छे नहीं चल रहे होते, उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि जी वो आपको कनेक्ट करें और आपको सपोर्ट कर सके हर वक्त। तो 24/7 के लिए आपकी अपना डेटा होना चाहिए मोबाइल पे हर इंडिविजुअल का, ताकि वो प्रॉब्लम में ना आए। और अगर किसी ने ये प्लान किया है कि वो अपने घर वालों के साथ भी जो है वो कनेक्ट रहेगा, उसके ऊपर मोबाइल की वीडियो कॉल्स पे अपनी फैमिली के साथ अगर वो प्लान करता है, तो वो उसके लिए बेस्ट ये है कि जी अ, वो अपनी डेटा जो है ना वो ज्यादा ले ले। वो डेटा ज्यादा ले ले ताकि उसको आसानी हो, उसको जो है प्रॉब्लम ना हो। डेटा उसका पे 20 GB होना चाहिए। ई सिम्स वहां पे हर कियोस्क पे नहीं मिल रही होती, मोबाइल सिम्स हर कियोस्क पे मिल जाती हैं, ई सिम्स हर कियोस्क पे नहीं मिल रही होती, मेनली मेन आउटलेट्स पे मिल रही होती हैं, मिल जाती हैं इजीली। और इनके लिए जो आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक पासपोर्ट की कॉपी, क्लियर स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके पास। दूसरी डॉक्यूमेंट जो इसके अंदर है वो ये है कि जो आपको एंट्री स्टैंप लगती है, वो एंट्री स्टैंप के ऊपर जो है वो सऊदी जो है इमिग्रेशन नंबर, जो आपका इमिग्रेशन नंबर होता है वो मेंशन करते हैं हाथ से। करने के बाद वो स्टैंप आपके पास, उसकी कॉपी होनी चाहिए, एक इमेज आपने उसकी ली हुई हो, अपने गैलरी में सेव की हुई हो। ये 2 चीजें जो है जरूरी है। और थर्ड, वो बायोमेट्रिक्स करते हैं, इसलिए कोई भी डेटा सिम कहीं पे भी आपको नहीं दे सकता जब तक आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट ना हो। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हम सजेस्ट करते हैं कि आप लैंड करके एयरपोर्ट से प्रोक्योर कर सकते हैं, वहां से कर लें, या अपने होटल आ जाएं, आपके पास बेसिक डेटा चल रहा होगा तो आप आराम से उसको फर्स्ट 24 आवर्स में होटल के पास बहुत सारे कियोस्क अवेलेबल होते हैं। लॉन्ड्री सर्विसेज के बारे में सवाल है एंड लॉन्ड्री सर्विसेज जो है वो कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं है। ऑल्दो लॉन्ड्री सर्विसेज जो अगर मक्का और मदीना के होटल हैं उनके पास इन हाउस होती हैं, वो आप एडिशनल कॉस्ट पे ले सकते हैं। एंड वेर एज अगर हम बात करें अपनी अजीजिया की अकोमोडेशन, रफाय और अजीजिया के जो हमारा पार्टनर अकोमोडेशन है उसके ऊपर, तो वहां पे ये सर्विस जो है, करीब शॉप्स होती हैं जो लॉन्ड्री सर्विस दे रहे होते हैं, तो वहां पे आप जाके कर सकते हैं। कभी कभी उनका पिकअप पॉइंट भी वो बना लेते हैं, तो वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि आपको डेली बेसिस पे इसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि रश के दिनों में उनकी भी टाइमिंग थोड़ी सी आउट चल रही होती है और वो भी टाइम ज्यादा ले रहे होते हैं। तो अपने आप को 1 वीक का बैकअप के साथ मैनेज करें ताकि आसान हो। चलिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि जी कैन वी कैरी मेडिसिन फ्रॉम अब्रॉड, और डायबिटीज और बीपी और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और टूथपेस्ट एंड माउथ वॉश इन अराउंड। अच्छा जी, डायबिटीज एंड बीपी, अगर किसी को कोई भी इससे रिलेटेड कोई चीज है और आप अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैरी कर रहे हैं, तो वो आपने खुद कैरी करना है, उसके लिए और तो कोई अवेलेबल नहीं होगा। मेडिसिन मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि ऐसी जो ओवर द काउंटर नहीं मिलती और आप समझते हैं कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर देख लें। मेडिसिन के लिए भी मेडिसिन और इसके हिसाब से भी एक जो है सर्कुलर प्रिपेयर हो चुका है, वो सर्कुलर आपके साथ होपफुली कमिंग डेज किसी वक्त भी शेयर हो जाएगा, ताकि उसमें भी ये सारी गाइडलाइंस होंगी कि क्या कर लें। एहराम के दौरान जी, एहराम एहराम के ऊपर 3-4 क्वेश्चंस हैं, हम उसको ले लेते हैं। एहराम के ऊपर एक क्वेश्चन ये है कि जी एहराम हमने ये कवर कर लिया पहनना कब था, लेकिन एहराम के ऊपर ये है कि जी एहराम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और एहराम की चेंजिंग के साथ साथ जो है शावर ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और इसके अंदर कोई टूथपेस्ट। देखिए जी, एहराम के अंदर
बहुत अच्छा तो ये होगा कि मुफ्ती साहब इसको कवर करेंगे, उनको ये चीज़ पास ऑन कर देंगे कि जी इसके ऊपर वो अपना कमेंट करें। एहराम मजबूरी की हालत में आप बिल्कुल एहराम चेंज कर सकते हैं, वॉशरूम जाते हुए एहराम उतार सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एहराम एक नियत का मामला है, नियत एहराम होता है। ये तो सिर्फ एक शक्ल है एहराम की, जो हमने दो चादर पहनी होती हैं, तो नियत के अंदर होते हैं। तो नियत जो उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें नियत के बाद अप्लाई होता है, जब हम लब्बाई को नियत कर लेते हैं। तो बाकी जो एहराम की जो दो चादर है उसको अगर चेंज करने की जरूरत है चेंज कर सकते हैं, वॉशरूम जाते हुए उतार सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शावर लेने अननेसेसरी ये सिर्फ इसलिए शावर लेना कि जी हम कोई जरूरत के बगैर, तो वो आई थिंक उसको सब ज्यादा अच्छा बयान करेंगे कि अवॉइड करने में क्या चीज है। टूथपेस्ट और सफाई, अगेन ये सफाई में आ जाती है, तो उसको किस तरह यूज करना है वो इसके ऊपर आपको पास ऑन करेंगे कि वो इसके ऊपर एक कमेंट कर, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों को जो है कि डॉक्यूमेंटेशन के जो बैग हैं जो पाकिस्तान से बाहर से आ रहे हैं, जी बिल्कुल आपको आपका एक पैक मिलेगा जिसके अंदर जो है बेसिक बैकपैक भी होगा और एक छोटा जो है वो डॉक्यूमेंट पाउच भी होगा। वो जो कैरी पाउच है वो भी उसके अंदर मिलेगा आपको इंशाल्लाह। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि उनके अराइवल्स कब होंगे। गिफ्ट पैक्स यहाँ से डिले हो चुके थे, जो फ्लाइट्स और यहाँ से जो है वो शिपमेंट्स, फ्लाइट नहीं शिपमेंट जो है वो डिले हो गई थी। जो लास्ट वीक सिचुएशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गई है, वो चीज़ अपने उन्होंने नेक्स्ट शेड्यूल दे दिया है, उस शेड्यूल के मुताबिक मूव करेंगे। तो हम एक उम्मीद करते हैं कि जी ये चीज़ें आगे चल के कवर हो जाएंगी। अच्छा जी, मैंने ये सब चीजें ऑलमोस्ट जो है चीजें आ रही थी। अच्छा, मक्का से मदीना की जो है वो ट्रांसपोर्ट बोर्ड, मक्का से मदीना का जो मदीना से मक्का का जो है, जो लोग मदीना हज से पहले जा रहे हैं उनका मदीना से मक्का जो है वो मूवमेंट बाय ट्रेन है। और जो लोग हज के बाद जा रहे हैं उन सब की मूवमेंट जो है वो अभी तक हज ट्रेन से कंफर्म नहीं हुई है। एंड कुछ डेट्स पे ट्रेन नहीं होगी, लेट्स से 9 जून को जिनकी मूवमेंट है उनको ट्रेन नहीं होगी, मतलब वो उनके शेड्यूल में नहीं है। उसके बाद जिनकी 10th को मूवमेंट है उसके लिए वो अभी तक उन्होंने होल्ड किया हुआ है, जिसकी 11th और 12th को मूवमेंट है वो भी होल्ड किया हुआ है। तो कुछ डेट्स पे वो कंफर्मेशन आएंगी, कुछ पे जो नहीं आएंगी तो वो एज पर शेड्यूल हम अपनी लग्जरी बसेस में मूव करेंगे। और अदरवाइज हमारी कोशिश है कि जैसे जैसे आती जाएंगी हम उनको कंफर्म करते जाएंगे। अच्छा जी, मदीन लगेज जो है मदीना एयरपोर्ट या मैं जद्दा अराइव कर रहे हैं, तो एक सवाल ये है कि वो क्या होटल तक डिलीवर होगा? नहीं, आप जब एयरपोर्ट पे मदीना एयरपोर्ट पे अराइव करेंगे तो लगेज आपने खुद अपना कैरी करना है, लगेज लेके बाहर आना है, और बाहर आके जो है वो ट्रॉलीज में अपनी या पोर्टर के थ्रू अपनी ट्रॉली आपने खुद लेके आनी है। और एक सर्टेन मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा? मीटिंग पॉइंट हमने बताया कि जी जद्दा एयरपोर्ट पे अलबेक है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और जो मदीना एयरपोर्ट है उसमें बाहर मैकडोनल्ड्स बना हुआ है, तो मैकडोनल्ड्स मीटिंग पॉइंट होगा, वहां हमारा कोऑर्डिनेटर लोकल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होगा। उसका नंबर आप 24 आवर्स पहले ले लीगा। इसीलिए आपका बेसिक डेटा अवेलेबल हो ना, ले सकें आपका बेसिक डेटा एक्टिवेटेड ना हो आप रोमिंग पे, तो पहुंचते ही एयरपोर्ट का डेटा एक्टिवेट कर लीगा, ताकि आप उनको फॉर्म कर सकें कि जी आप लैंड कर गए हैं, आप इमिग्रेशन और फिर अपना लगेज से लेके बाहर आ रहे हैं। तो बाहर वो आपको रिसीव करेंगे। जो मूवमेंट है वो ग्रुप बसेस के अंदर मूवमेंट हो रही होती है, अनलेस के कोई हमने स्पेसिफिकली किसी ने कोई अपनी डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड लिया हो। और इसी तरह जो है लगेज आपके साथ होगा, लगेज आप बाहर आके फिर बस में बोर्ड करेंगे तो उस वक्त लोड होगा और वो आपके साथ मूव करेगा। कुछ फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि रूट टू मक्का में आती हैं, ये एक नया प्रोजेक्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तान से वो फ्लाइट्स बोर्ड कर रही होती हैं। एंड मेनली वो फ्लाइट्स सऊदी एयरलाइन पे जो लोग होते हैं और पीआईए पे वो फ्लाइट्स उन पे इम्पैक्ट कर रही होती हैं। उनका सामान जो है वो प्री बुक्ड होता है कि उनको मिलेगा उनके होटल में, बाकी सबको एयरपोर्ट पे मिलेगा। एंड अगर वो नंबर छोटा होता है कुछ वो भी लास्ट मिनट वो लोग चेंज कर लेते हैं। तो इसमें जिन लोगों का नहीं है, हमें इसको सिंपली ये रखना है कि आपने अपना लगेज नॉर्मल इमिग्रेशन के बाद लेना है और बाहर आके अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलना है अपने बैग से। अगर किसी का बैग मिसप्लेस हो रहा हो, नहीं आ रहा हो, लेट हो रहा हो, तो वो रिपोर्ट करके बाहर आएंगे। अंदर ही होता है रिपोर्टिंग काउंटर, तो उसको रिपोर्ट करके आएंगे और उसका पूरा आपने मेक श्योर करना है कि आप उसका टिकट और उसकी जो कंप्लेन है वो लॉन्च करना है।
अच्छा जी, लगेज की लिमिट जो है अगर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन से जब हम ट्रैवल करेंगे मदीना से मक्का, तो लगेज आपके साथ नहीं होता। लगेज आपका जो है वो अलग से जो है वो ट्रक में जाएगा। लोडिंग ट्रक में अलग से हम भेजेंगे। आपके पास सिर्फ आपका हैंड कैरी होगा। तो अगर जो लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास अगर बैग्स हैं तो कोई इशू नहीं है। वो आप हमें दे दीगा, हम उसको अलग से जो है शटल करते हैं ताकि वो होटल टू होटल चला जाए। और इसीलिए वो उसके टाइमिंग्स होते हैं कि वो कौन से टाइम पे आपको बैग देना है और कौन से टाइम पे बैग आपको मिलेगा, क्योंकि वो डोर टू डोर जरूर होता है लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसका एक प्रोसेस होता है, फिर उसकी सिटी एंट्री के अंदर भी जो है वो उसमें टाइम लगता है। तो आप सिर्फ अपने साथ हैंड कैरी रखेंगे। हैंड कैरी जो है जो आप खुद कैरी कर सकें, उसके अंदर आपके वैल्यूएबल्स होंगे। कोशिश करेगा वैल्यूएबल्स मेन बैग में ना हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जी, एयर टैग्स टेक्नोलॉजी बहुत आम हो गई है, ट्रैकिंग हो गई है। आप अपने बैग्स में जरूर कोशिश करें कि ये चीज़ों को डालें ताकि कभी भी कोई चीज़ हो तो वो हम कर सकें। ऑलमोस्ट मैं ये देख रहा हूँ कि ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए थे उन सबको हमने कवर कर लिया है। अगर कुछ रह गए होंगे, लेट्स से अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रह गए हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह हम उनको नेक्स्ट उसमें कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा 18 को है, उसमें हम और डिटेल करेंगे इन सब चीज़ों को। उसमें हम कवर कर लेंगे। और फिर भी आप समझें कि आपका कुछ रह गया है तो आप अलग से दोबारा वापस जो है प्लीज़ अपने एसपीओस को भेज दीजिएगा कि जी मेरे ये वाले क्वेश्चंस रह गए हैं तो इनका आंसर करते हैं, और अगर वो बुकलेट में भी आपको ना मिल रहे हो। अब कौन सी ब्रांड के, एक सवाल ये भी है कि जी ये जो अनसेंटेड सोप्स हैं, लोशंस हैं, सनस्क्रीन है, तो ये कौन सी ब्रांड के अमेरिका में मिलेंगे या दुबई में मिलेंगे? जी इसकी कोई ब्रांड हमें नहीं पता। ये आपने खुद चेक करके लेना है। और इसकी हमें सिर्फ जो है देखें, इतनी जरूरत नहीं होती कि हमें 2 दिन हम एहराम में होते हैं हज के, वो 2 दिन के लिए कोशिश करें कि कम से कम यूज हो। और बेसिक चीजें आपको सऊदी अरब में ये सब मिल रही होती हैं, तो बहुत ज्यादा इसको लेने की और इसको रखने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब में जो है वो इजीली मिल रहे होते हैं, कोई ब्रांड्स नहीं होती हैं, अनब्रांडेड चीजें होती हैं, तो वो इजीली अवेलेबल होती हैं। और उम्रा जो है मैंडेटरी है विद हज तमत्तो। जी बिल्कुल, हज तमत्तो के में जो है पहले उम्रा मैंडेटरी है, उम्रे के बाद आपका एहराम खुल जाता है। जब आप हज के लिए जाते हैं तो फिर हम वापस उसको हज का एहराम, फिर हज का एहराम बाद में पहनते हैं। पहले आप मिना का एहराम पहन रहे होते हैं, उम्रे का एहराम पहन रहे होते हैं। अच्छा जी, ट्रांसलेटर डिवाइसेस भी प्रोवाइडेड? नहीं जी, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो कि ट्रांसलेशन की हमें जरूरत एज सच नहीं हो रही होती। कुछ हमारे लेक्चर्स हैं जो हम इंग्लिश और उर्दू में कर रहे होंगे अलग अलग। अब जैसे आज का लेक्चर जो है वो इमाम नदीम बशीर साहब ने जो है वो इंग्लिश में किया। और हमारे फर्स्ट प्रोग्राम में दो लेक्चर्स थे, एक जो है वो स्पीच इंग्लिश में थी, एक उर्दू में थी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में भी मेनली हम उर्दू में कर रहे होंगे ऑन साइट प्रोग्राम में। और आगे भी जो है मिक्स होंगे, कुछ चीज़ें जो है वो कुछ लेक्चर्स इंग्लिश में आ रहे होंगे, कुछ उसमें। और मुख्तलिफ मौलाना हजरात, मुफ्ती हजरात हमारे साथ हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमें विजिट करेंगे, और उनके शेड्यूल्स बनते रहेंगे। और डेली इंटरैक्टिव सेशंस भी हमने रखे हैं। मुफ्ती हजरात ऐसे जो हमारे साथ होंगे उनके साथ हमने टाइम डिजाइन किया है कि वो डेली जो है आपके पास अवेलेबल होंगे कि आप उनके साथ अपने क्वेश्चन आंसर्स जो है वो उनके साथ शेयर कर लें। तो जो लोग, और कुछ टाइमिंग्स ऐसे होंगे कि जिसमें जो है वो डेली लेक्चर हो रहा होगा एक, ताकि वो हमें हज के बारे में डेली क्या करना है, कैसे चलना है, वो सब चीजें आपको गाइड कर रहे होंगे। जो लोग फिजिकली अटेंड कर सकें, ऑन साइट अटेंड कर सकें, वो करें। जो लोग नहीं कर सकें वो जूम लिंक ले लेंगे, जूम लिंक अवेलेबल होगा, उसके थ्रू कनेक्ट करके सुन लें अपने अपने रूम से। वो जरूरी है ताकि आप लोगों का एक मोमेंटम बनता रहता है, कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, कुछ चीजें आ जाएं। हमारा बेसिक मकसद वहां पे इसी चीज के लिए है। अच्छा जी, आई थिंक चीज़ें कवर्ड हैं। कोई चीज़ मैं एक दफ़ा कोई गो थ्रू कर रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो तो मैं उसको कर लूँ। कुछ क्वेश्चंस अभी मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे आ रहे हैं, उसको भी देखने। अच्छा जी, ये बिल्कुल लॉजिस्टिक और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो होगा वो लॉजिस्टिक्स के ऊपर। अब लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट जो हमारी, किस दिन हम सुबह मूव कर रहे होंगे, रात को, ये नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम कवर कर रहे होंगे डिटेल।
और हज की कुर्बानी एक होती है, जिसकी ईद की कुर्बानी है वो अलग करेगा, अदर और वो अपनी कंट्री में करता है। हज की कुर्बानी सिर्फ जो है वो मक्का में हो सकती है, तो उसका डोमेन मक्का है तो उसको मक्का करेगा। अभी जो ये क्वेश्चन है, टैक्सी के चार्जेस जो है ना वो वेरी कर रहे होते हैं, यूजुअली 50 टू 150 रियाल्स के दरमियान टैक्सी चार्ज कर रही होती हैं, एक्सेप्ट हज के 2 दिन, जिस दिन वो 200 टू 300 रियाल तक जा रहे होते हैं कि एक गाड़ी में जिसमें 4 से 5 6 लोग आ सकते हैं। तो वो आई थिंक 1 वे या 2 वे 1-2 दिन का इम्पैक्ट हो रहा होता है, जब उसको लोगों में डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। कितना कैश रखें ये प्लीज, हमने वो सर्कुलर दिया है उसको कवर कर लेंगे तो आपके पास उसका भी आ जाएगा कि हम कितना कैश करें। फिर इसके बाद जो है, जो लोग डिस्कस अरेंजमेंट्स अबाउट पीपल, एज पीपल, देखें जी, अगर किसी की कोई स्पेशल कंडीशन है तो वो पहले से इन्फॉर्म कर ले। कुछ अगर किसी ने उसके लिए जो है वो हेल्पर अरेंज करवाना था तो उन्होंने करवा दिया है, अगर नहीं करवाया तो देखें वो सर्विस होनी चाहिए, अदरवाइज वो सर्विस अपने एसपीओ से डिस्कस कर लें। अगर किसी की इस तरह की कंडीशन हैं कि वो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं या चीज़ों की मूवमेंट है तो वो उसको इंडिविजुअली डिस्कस कर लें। बिल्कुल जी, इमरान ताहिर साहब ने कहा आई बी लैंडिंग एट 11:50 ऑन थर्ड एट जद्दा एयरपोर्ट। बिल्कुल, वहाँ आप उससे 24 आवर्स पहले लोकल रेप का नंबर ले लेगा, वो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे। सबके लिए यही है, जो लोग जिस टाइम भी आ रहे हैं 24 आवर्स पहले अपने एसपीओ से कोऑर्डिनेट करके आप उनका नंबर ले लें, आपको एक वाउचर आएगा और उसके बाद जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन एयरपोर्ट पे आपको रिसीव कर रहा है। और नंबर नहीं भी आता तो बेस्ट है इसके, जब आप लैंड करें तो आपके पास होना चाहिए। जून 1st 2nd इज इट अवेलेबल येट? मुझे नहीं मालूम, ये किसी ने लिखा है तो उसका वो क्या सवाल करना चाह रहे थे। जून, अच्छा ओके, जून मंथ के अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो शो नहीं कर रहा, बिल्कुल 31st लास्ट तक कर रहा है और 31st लास्ट अराइवल्स है मदीना में, तो मेक श्योर कर लें 31st की रात तक के आपके अपॉइंटमेंट्स ले लें। 1 जून के अपॉइंटमेंट्स मोस्ट लाइकली वो नहीं खुलेगा, और जो भी मदीना अराइवल्स हैं हमारे, वो 31st को लास्ट अराइवल कंप्लीट हो जाएंगे। अराइवल्स डिपार्चर्स तो डिफरेंट डेट्स में हो रहा है, बट अराइवल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप 31st की शाम और रात में जरूर कंप्लीट कर लें। जो लोग मक्का से अजीजिया, मक्का होटल से अजीजिया शिफ्ट कर रहे हैं, उनको, और स्पेशली जो 8 को करेंगे, जो ये सवाल है जैन साहब का, बिल्कुल वो अर्ली सुबह राइट आफ्टर फजर। और जो लोग उससे पहले शिफ्ट कर रहे होंगे वो बिफोर जोहर, 10:30 राइट आफ्टर ब्रेकफास्ट होता है, 10 until 30। एंड जो लोग 8 को करेंगे वो राइट आफ्टर फजर। तो क्योंकि वहां पे मूवमेंट वो बहुत टफ डे होता है 8 से को। एंड एक चीज और, लगेज के ऊपर ये किसी ने सजेशन पूछा है, जो लोगों का स्टे मक्का में शॉर्ट होता है वो चाहें तो अपना उनको हम पैकिंग, 1 दिन का जिनका स्टे होगा मक्का में, वो अपने लगेज जो है, लगेज मदीना से जब निकलेंगे तो वो अपना लगेज शटल करवा दें हमें। हम उनका लगेज उनके अजीजिया की अकोमोडेशन तक ले जाएंगे और वो अपने हैंड कैरी में अपना बेसिक 1 दिन का जो है जो भी नेसेसिटी चीजें हैं वो 1 दिन की अपनी हैंड कैरी में रख लें। बिल्कुल रख सकते हैं जी, ये अच्छा सवाल है। अच्छा जी, ये है कि एक सवाल ये लिखा है कि ऑन द डेज ऑफ तशरीक Saudi authorities would close many ways back to Mina tent from Jamarat. Some of our peers had to walk 5 kilometers इन द हीट टू गेट बैक। बिल्कुल ऐसा है कि जी, ये जो वहाँ के रूट मैप्स हैं और जो प्लानिंग होती है और जो रोड क्लोजर्स हैं वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं। एंड इसीलिए जो टाइमिंग्स हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं उन टाइमिंग्स को देख लें कि एक तो पीक टाइमिंग्स जो गर्मी के टाइमिंग्स हैं, जिसमें वो टाइमिंग्स तो वैसे भी अवॉइड करने चाहिए, हमारे पास शाम तक के टाइम है कि हम कर सकते हैं। और उसको अपने उस वक्त कोऑर्डिनेटर्स के साथ ये प्रिपेयर होके जाना है कि कभी कभी वॉक कर, अगर उन्होंने रोड्स बंद कर दिए हैं तो हमें 2 से 3 किलोमीटर वॉक करनी पड़ जाती है, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड होता है और वो कोई प्लान नहीं होता उसके ऊपर जो है वो सऊदी वो बेसिकली वो बंद नहीं करते, वो टेक्निकली उस ट्रैक को ऐसे डिजाइन कर किया हुआ होता है उन्होंने कि जैसे ही वो देखते हैं कि लोड आ रहा है तो वो ट्रैक को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि वो ट्रैक आगे से लोग टर्न करके आए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी कंजेशन ना हो, कोई भी उसमें एक्सीडेंट ना हो।
हज तमत्तु के लिए कर रहे होंगे तो नहीं जी, मीकात नहीं जाना हज का एहराम बांधने के लिए, ये मैंने अभी भी बताया। और वाईफाई अजीजिया के अंदर बिल्कुल अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी जो है ना, वो लॉबी में आ रहा होता है, पैसेज में आ रहा होता है, रूम्स में नहीं आ रहा होता है, या कहीं किसी कॉरिडोर में आ रहा होता है। तो इसीलिए बेस्ट है कि आप मिनिमम 10 and 20 GB एटलीस्ट का एक अपना जो है वो पैकेज ऑन करवाएं, और हम इंडिपेंडेंट रहें, किसी पे बेस ना करें। बहुत सारी जगह पे वो नहीं चल रहा होता। कैन वी वाइप आवर फेसेस एंड स्वेट यूजिंग टॉवल? बिल्कुल, किसी चीज को अगर एहराम में अगर आप सफाई ये वाइप करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको रख नहीं सकते, या कोई से के जी कोई भी चीज है तो उस कंडीशन में एहराम की जो कंडीशंस है ना, उसको आराम से इसको आराम से पढ़ लें। जो हमारी जो एहराम की कंडीशंस होती हैं, उनको हम पढ़ लें कि एहराम में क्या क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि वो कंडीशंस जो है ना, वो इतनी स्ट्रिक्ट, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन हमें प्रैक्टिस नहीं होती तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको आराम से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाता है। फिर इसके बाद नुसुक अपॉइंटमेंट्स आर नाउ अवेलेबल फॉर जून। जी, किसी ने लिखा है, आई एम नॉट श्योर कि नहीं, क्वेश्चन है नहीं, अब जून के नहीं मिलेंगे, 31 मई तक अवेलेबल है, तो प्लीज 31 मई तक ले लें और सबको एक ही मिलेगा। और तवाफ ज़ियारा के साथ सही करना जरूरी होता है, तवाफ ज़ियारा के साथ सही करना है अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं। फ्राइडे को 4:20 PM पे ये इंडिविजुअल, नूर साहब आपका सवाल है, आई थिंक ये सवाल का हमें प्रोग्राम देखना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट 4 आवर्स पहले हमें जो है ना वो एयरपोर्ट जाना पड़ता है, 6 आवर्स पहले मदीना में और 9 आवर्स पहले मक्का के जद्दा के एयरपोर्ट पे। तो अगर आपका डिपार्चर इज फॉर मदीना टू आउटसाइड तो फिर अलग चीज है, अगर ट्रेन है तो फिर अलग अलग चीज होगी। डैलिस से आ रहा हूँ, आई एम फ्रॉम डैलिस, वेयर विल आई गेट माय स्टफ? जी, डैलिस हो या कहीं से भी ज्वाइन कर रहे हो तो मक्का पहुंचेंगे, मदीना अराइवल पे नहीं, मक्का अराइवल के 72 आवर्स के अंदर आपका जो है वो जो इनिशियल गिफ्ट पैक है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। नुसो कैब इज नॉट शोइंग राउटर, ये तो इकरा उमर, बिल्कुल जी, ये तो 2 वीक्स पहले कि हमने इसको इंटीमेट कर दिया था जब अवेलेबल थे। अब जो अवेलेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी तो फिर वो नहीं अवेलेबल होंगे और नहीं आएंगे। गिफ्ट पैक जो है उसकी पूरी डिटेल जो दी दी है कि जो ओवरसीज हैं उनके गिफ्ट पैक के अंदर क्या होगा, बैकपैक होगा एक, उसके अंदर एहराम का सेट होगा, स्कार्फ होगा, और क्या क्या चीजें होंगी, वो सब चीजों की डिटेल जो है वो आप बुकलेट इंशाल्लाह पढ़ें, उसमें कवर हो जाएगा। और गिफ्ट पैक का सर्कुलर एक अलग से भी प्रिपेयर कर लिया है, ताकि डिटेल्स के साथ वो भी आपको वीक में मिल जाएगा। और पैकिंग मटेरियल और चेकलिस्ट को आप देख लें तो इससे क्या है कि आप एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ना परचेज कर लें। बिल्कुल, पीपल हु आर इन नॉन शिफ्टिंग पैकेज, तो वो बयान मुफ्ती साहब का जो है बिल्कुल वो कर सकते हैं, उनका बयान जूम पे उनके पास एक्सेसिबल होगा, वो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। हरम के पास के होटल के प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो वहां पे ज्यादा बयान की इजाजत नहीं देते, या बहुत ज्यादा लोगों का मजमा इकट्ठा होने की इजाजत नहीं देते, वो उनकी वहां के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आप लोगों का जूम पे एक्सेस होगा, टीम अवेलेबल होगी, आप वहां पे कर सकते हैं। एक सवाल बहुत आ रहा है मास्क पहनने का, बिल्कुल, अगर मास्क वैसे तो फेस कवर करना मना है, लेकिन मास्क एज ए मेडिकल कंडीशन जो है उसको पहनने की इजाजत है, तो वो आप पहन सकते हैं आराम में। एस आपके एसपीओ बेसिकली जो है, जो आपका सेल्स कांटेक्ट पॉइंट कोऑर्डिनेटर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके अंदर जो टीम आपसे कांटेक्ट कर रही है वही आप के साथ थ्रू आउट जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रहेगी। और जो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटर फॉर हज डेज जो असाइन होगा उसका नाम आपको बता देंगे, वो आपसे आके आपके वहां पे आपसे मिल भी लेगा। आप जैसे पहुंचेंगे तो आप उससे इंशाल्लाह मिल लेंगे। फोल्डिंग चेयर अवेलेबल होगी? नहीं जी, हरम के अंदर तो फोल्डिंग चेयर्स अवेलेबल होती हैं, फिर भी लिमिटेड होती हैं, खत्म हो जाती हैं। आप अब अगर आपको सिट करने में कोई प्रॉब्लम है ग्राउंड में, तो बेस्ट है कि आप अपनी फोल्डिंग चेयर जो वहाँ मिल रही होती है वो ले लें। नमाज के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे यूजली कोई ना कोई चेयर अवेलेबल होती है, लेकिन मिना में जा रहे हैं या अरफात जा रहे हैं तो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी।
डुअल पासपोर्ट्स के होल्डर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल ये अगेन पूरा डिटेल में इसका जो है वो उसको ब्रीफ किया हुआ है। एक उसका ब्रीफ मौजूद है कि जी दोनों पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट और आपका जो सेकंड नेशनैलिटी पासपोर्ट है, इसको एक तो आप एक साथ अटैच नहीं करेंगे। इसकी रीजन ये है कि जो आपका इंटरनेशनल पासपोर्ट इन अ सेंस फॉरेन नेशनैलिटी हो गया अदर देन पाकिस्तान, तो वो सऊदीज को नहीं चाहिए। आपका सऊदी पासपोर्ट चाहिए होता है तो किसी वक्त भी वो आपके साथ रख लेंगे, मांग लेंगे और रखते हैं अपने पास, होल्ड करते हैं फॉर अ टाइम बीइंग। तो उसमें आपका दूसरा पासपोर्ट या पुराना पासपोर्ट, एक्सपायर्ड पासपोर्ट भी हम यूजुअली क्या करते हैं कि अपने करंट पासपोर्ट के साथ अटैच कर लेते हैं। तो वो नहीं करेंगे, डिटैच करके रखेंगे ताकि हमारा सिर्फ जब भी वो होल्ड करें तो एक पासपोर्ट जाए, और जिसका उनको जरूरत है स्कैन करने के लिए, अपने पास रखने के लिए। मकतब नंबर्स बेसिकली जो हमारा जोन 1 सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर 1 and 2, सर्विस सेंटर 1 and 2, जोन 1 मकतब कैटेगरी ए। अब मकतब नंबर्स बेसिकली जो है वो वहां पे जो है वो जोन नंबर्स और कैंप नंबर्स लिखे होते हैं। और तो जो ए कैटेगरी है, अब वहां पे इस तरह आइडेंटिफाई हो रहा होता है ए कैटेगरी, और उसके दो ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। ए कैटेगरी है, जोन 1 है, ये इस तरह चल रहा होता है। तो जोन 1 ए कैटेगरीज, फिर सर्विस सेंटर्स लिखे होते हैं जो उनके जो गेट नंबर्स के साथ अटैच होता है, तो वो सर्विस सेंटर्स आ रहे होते हैं। जो लोग बी कैटेगरी में हैं उनके जोन 2 बी कैटेगरी, उनका सर्विस सेंटर 7 होगा। तो और जो डिस्टेंस है, आपने पूछा अजीजिया से और मिना से और जमरात से, बिल्कुल करीब करीब इसका डिस्टेंस है। अबाउट जमरात से डिस्टेंस जो हमारा जोन 1 है, इट्स हार्डली आई थिंक 2-3 मिनट्स। वहीं आप बिल्कुल मस्जिद खैफ के साथ हैं, सामने हैं, तो वहां से 2-3 मिनट की वॉक है गोइंग टूवर्ड्स जमरात। लेकिन वापसी में ट्रैक चेंज हो जाता है तो वो ट्रैक थोड़ा लंबा हो जाता है। जो 7 में है, जो जोन 2 में है, उनकी वॉक इज अबाउट 15 मिनट्स। एंड हमारी इसकी जो वॉक अजीजिया से है, अजीजिया से जो वॉक इज अबाउट 35 मिनट्स, 30-35 मिनट्स की वॉक है, जो हम टनल और ब्रिज को क्रॉस करके आ रहे होते हैं। तो अजीजिया में बेसिक टॉयलेट टॉवल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, और वो ऑल्टरनेट में उसको आप चेंज भी करा सकते हैं टॉवल्स को। और बाकी अगर आप कोई स्पेसिफिक ब्रांड की कोई भी टॉयलेटरीज यूज कर रहे होते हैं तो वो आप अपने साथ कैरी कर लें, ताकि आप अगर किसी चीज के यूज टू हैं तो प्रॉपर्ली। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स का सेट आप लोग प्रोवाइड करेंगे इन थर्ड क्लास। जी, डॉक्यूमेंट्स का सेट जो है वो तो ऑफिस से आप रिसीव करेंगे। मीनवाइल जो है गिफ्ट पैक जो है वो जो लोग ऑन साइट प्रोग्राम, हमारा थर्ड प्रोग्राम 18 को अटेंड कर रहे होंगे वहां से करेंगे। जो लोग बाहर से होंगे वो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेंगे। आई थिंक अब विच ऐप शुड वी गो विदाउट यार, मदीना स्लॉट जी, मदीना ज़ियारत के नुस्खों का ऐप है दो। और दूसरी ऐप जो हमारे जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो हज विद खैर की ऐप है, उसके भी हम शेयर कर चुके हैं लिंक्स। और वो बाकी नुस्खों ऐप है, नुस्खों ऐप को आप करेंगे जिसपे आपको स्लॉट मिल रहे हैं। 18 को आरटी रॉयल हमारा जो है वो क्लिफ्टन ब्लॉक 2 and 3 में बेसिकली ये लोकेटेड है नियर बिलावल हाउस। और ये इसमें शाम को 7:30 पे 7:15 पे वहां पे जो है ना वो इशा की नमाज है, तो मगरिब की नमाज है उसके राइट आफ्टर, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो वो आपको लोकेशन और कार्ड पे आ जाएगा। स्पेंडिंग होल नाइट इन ऑन 10th and 12th जिलहिज्जा एंड मिना ये देखें इसकी क्या कंडीशंस हैं उसके लिए। आपको तो आप कर ही नहीं सकते 10th और से 12th तक, बिकॉज आपको तवाफ ज़ियारा के लिए जाना है, जमरात के लिए जाना है। तो वो आपको इन एंड आउट होता रहता है, उसके ऊपर कोई दम नहीं है, कोई कंडीशन नहीं होती। उसकी डिफरेंट वो है, आप मालूम कर लेंगे किसी स्कॉलर से, मुफ्ती साहब साथ होंगे उस वक्त, उनसे पूछ लेगा, आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। कैन आई गो टू जमरात एंड देन कंटिन्यू टू अजीजिया फ्रॉम देयर? बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप वॉक कर रहे हैं मुनीम साहब तो आप ये कवर कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि वॉक जो है ना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है और रिकमेंडेबल नहीं है। आप फंस जाएंगे, बहुत लंबे ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स बंद होते हैं, गाड़ियां अलाउड नहीं होती और बहुत गर्मी होती है। तो उसको उस वक्त देखते हुए पूछते हुए फिर कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।
जो रौदा विजिट है बिल्कुल यही रियाजुल जन्ना विजिट होता है, यही रियाजुल जन्ना विजिट है। जो आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं वो रौदा का, वो रियाजुल जन्ना है। व्हील चेयर्स एयरपोर्ट पे अवेलेबल होती है, हर एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट सर्विस की तरह उसके बाद उनके पास अवेलेबल होती है। लेकिन अगर किसी का स्पेसिफिक है तो वो मेक श्योर करें पहले जो है वो अपने टिकट के अंदर उसको ऐड करवा लें। टिकट के अंदर व्हील चेयर को ऐड करवाना जरूरी होता है, ताकि वो फिर आपको इंश्योर करते हैं उसकी अवेलेबिलिटी। अगर ऐड नहीं किया हुआ होता तो वो फिर लास्ट मिनट में ऐड करना मुश्किल होता है, तो वो टिकट टीम को अपने बता दें कि जी आपने व्हीलचेयर ऐड करानी है। जी बिल्कुल। रौदा का अपॉइंटमेंट, रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट मर्दों को भी लेना जरूरी है। हमजा तुम्हारा मैंडेटरी टू लिव इन मिना 11th एंड 12th जिलहिज्जा, कैन वी स्टे इन अजीजी एंड गो टू जमरात? बिल्कुल हमजा, आप कर सकते हैं ऐसे। कितनी देर आपको फुल कंप्लीट टाइम पे रहना जरूरी नहीं है, बट मिना किस टाइम जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। रात को जाएं, कुछ नमाजें पढ़े, फिर वहां से जमरात कर सकते हैं और वापस आके अपनी अकोमोडेशन से भी कर सकते हैं। रिजवान साहब कह रहे हैं कि आयशा अशफाक, हाउ मेनी एहराम एंड चप्पल डू यू रिकमेंड? अच्छा, एहराम के ऊपर और बैकपैक के ऊपर ये था। देखिए जी, एहराम जो है ना, वो एक एहराम हज के लिए इट्स इनफ, बट एक उसके साथ एक एक्स्ट्रा आप कैरी कर लें, एक चादर, या मर्द लोग जो है एक चादर और एक एक्स्ट्रा टॉवल कैरी कर लें, और लेडीज एक एक्स्ट्रा सूट जो है वो कैरी कर लें। ये इन केस अगर कहीं ना कहीं वो 2 दिन बिना 8 और 9 जिलहिज्जा को कोई इशू आता है तो उसके लिए बैकपैक में रखें, उसको कैरी कर लें। स्लीपर्स, जॉगर्स कुछ भी पहन सकती हैं लेडीज। बॉयज के लिए, जेंट्स के लिए ये है कि जी वो लोग, मर्द हजरात जो हैं, उनको जो है वो स्लीपर्स ऐसी पहननी है जो कि ऊपर उनकी पैर की हड्डी है वो नजर आए, तो उसके हिसाब से वो स्लीपर्स सेलेक्ट कर लें। बाकी लोग जो हैं वो लेडीज कुछ भी पहन सकती हैं। जी, जो लोग जिनकी भी फ्लाइट्स अब शुरू होंगी, आपने एयरपोर्ट खुद पहुंचना है, खुद आपने अपना चेक इन कराना है, खुद आपने अपना लगेज बोर्ड करना है, और आप इसको करेंगे। एयरपोर्ट की जितनी भी चीजें हैं अपने डिपार्चर एयरपोर्ट से आप खुद इसको मैनेज कर लें। प्राइवेट क्लिनिक से अगर आपने वैक्सीनेशन करवानी है करवा लें, सर्टिफिकेट रख लें। हाजी कैंप से कार्ड बनवाना पड़ेगा। हाजी कैंप, तो अगर आप पाकिस्तान से, कराची से कर रहे हैं तो आप 18 के प्रोग्राम में आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी, इंशाल्लाह आप वहां से भी कर सकते हैं। और लोकेशन मैप और लोकेशन टू नेविगेट, बिल्कुल जी, मैप्स और जो बुकलेट है उसके एंड में सारे लैंडमार्क्स दिए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं वो दिए हुए हैं हमारे होटल के, मिना के, कैंप के, अराफात के। तो बहुत इजी है, आप उनको अपने पास रखें, कभी भी जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं। And we have to spend the night in Mina. Can we stay in Azizia during the day, and if permissible time to leave Mina? जी आप कर सकते हैं बिल्कुल। आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। सैनिटाइजर्स वगैरह को हराम में यूज ना करें। बेशक वो जरूरत ना जरूरत हो तो उसको जरूर यूज ना करें। डेली इस्लामिक गाइडेंस और डेली क्लासेस होंगी अपार्टमेंट में भी और रफाया में भी। और जो लोग कहीं बाहर होंगे या हरम के पास भी होटल में होंगे, उनका भी एक्सेस होगा कि वो उसको एक्सेस कर सकें। कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो सिर्फ ऑनलाइन होंगे, कुछ प्रोग्राम ऑन साइट भी होंगे। जी, प्रोग्राम जो होगा, वसीम साहब, आपका सवाल है वैक्सीनेशन कार्ड का, वो बिल्कुल आपको उस दिन मिल जाएगा। आप उस दिन जो लोग उसको करेंगे, शॉर्ट्स लेंगे, उनको मिल जाएगा। वाटर बॉटल आयशा अशफाक नहीं रखने की जरूरत है, प्लीज बुक में पड़ेगा। वाटर बॉटल्स जो है वहां पे वैसे भी छोटी प्लास्टिक वाटर बॉटल डिस्पोजेबल होती हैं। अगर कुछ वाटर आपने रखना है तो वो बॉटल जो है वो रख लें, एक्स्ट्रा बॉटल्स ना रखें। फिर भी आपको एक सेट जो है वो लास्ट जो गिफ्ट पैक होगा जो मशायर का, उसमें मिल जाएगा, तो उसमें वो इंक्लूड होती है। मक्का में रहते हुए मल्टीपल उम्रास बिफोर हज करना रिकमेंडेबल नहीं है, बहुत रश होता है, और अपने आप को हज बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हम। आप वेट करें, हज के लिए तैयार करें, जितना रेस्ट करें, क्योंकि आपके मेन टारगेट, मेन डेज हज के डेज हैं। रश इतना होता है कि एक चीज के लिए जाने आने में, और उसके लिए उम्रे के लिए आपको नियत करने के लिए मस्जिद आयशा जाना, विच इज अगेन सेकंड उम्रे के लिए बात हो रही है, तो बहुत दूर हो जाता है वो, और उस बहुत ट्रैफिक होता है। नुसुक कार्ड, बिल्कुल नुसुक कार्ड, नुसुक के ऊपर उम्र की परमिशन नहीं लेनी है। वो नुसुक कार्ड आपका चेक कर रहे होते हैं जो आपको अराइवल के बाद वहां पे मोहल्ले में इशू करता है। और नुसुक कार्ड जो है वो आप
नुसुक कार्ड जो है वो आप बिल्कुल रख सकते हैं। नुसुक कार्ड आपको मिलेगा जब आप पहुंच जाएंगे, उसके 2 से 3 दिन बाद आपको मिल जाता है। नुसुक कार्ड इस वक्त वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो गया, ताकि वो लोकल्स जो है वो आपको चेक कर रहे होते हैं। जब तक नुसुक कार्ड नहीं है तो ऑल्टरनेट आपके पास बेस्ट आपका वीजा कॉपी है, उसको प्रिंट करके रखें, उसको मोबाइल पे रखें, कोई भी चेक करेगा, कोई इशू नहीं है, आपको हरम में जाने देता है और आप अपना उम्रा कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट अभी तक उन्होंने प्रोसीजर नहीं बनाया है। जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए पोलियो वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है, पोलियो कार्ड की वैक्सीन करना सिर्फ कराची से जो जा रहे हैं उनके लिए है। महफूज साहब, आई थिंक मैंने क्लियर कर लिया इसको। ट्वेंट और प्राइवेट की भी हो गई है। हज का एहराम भी हमने क्लियर कर लिया कि जी हम मिकात से नहीं पहनेंगे, अपनी अकोमोडेशन से पहनेंगे, जहां जहां है 8 जिलहिज्जा की सुबह हम ये करेंगे। जी फजर 9th की मिना में नहीं, अरफात में होगी, क्योंकि हमारी मूवमेंट जो है वो रात को आफ्टर डिनर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, डिफरेंट ग्रुप्स की मूवमेंट होती है सिस्टम्स। अब वहां पे जो है हम उसको प्रेफर करते हैं। रात की मूवमेंट सेफ है, पार्किंग वाइज, रोड कंजेशन वाइज, और उसके बाद कभी कभी बसेस जो है वो डिस्टेंस पे उतारती हैं रोड क्लोजर्स की वजह से, तो वॉक करनी पड़ती है। तो बहुत सारे जो है वो चीजें हैं जिसको देखते हुए हमारी मूवमेंट रात को तो फजर हम जो है अरफात में कर रहे होते हैं। नी पैड इन एहराम विद एहराम, जी अतीक साहब ये आई थिंक मौलवी साहब से पूछ लें। मेडिकल कंडीशंस में हर चीज की एक्सेप्शंस अवेलेबल होती हैं, अगर कोई आपकी मेडिकल कंडीशन है ऐसी तो कोई इशू नहीं है। नो ट्रेन सर्विस विल बी प्रोवाइडेड। ये मैं समझा नहीं। ट्रेन सर्विस मदीना से मक्का होगी, मक्का से मदीना के लिए अभी तक ट्रेन कंफर्म नहीं हुई हैं। और जो मशायर मिना के अंदर ट्रेन सर्विस का अगर सवाल है तो वो उसका एक्सेस सबको नहीं होता, वो लिमिटेड कैंप्स के साथ अटैच होती हैं। वो और ये कैंप्स जो स्पेशली जो कैंप्स जमरात के करीब वाले कैंप्स हैं, जो मस्जिद निमरा के करीब, मस्जिद खैफ के करीब वाले हैं, उनको तो नहीं होता। वो उनके जोन्स अलग बने हुए होते हैं। जैसे जोन 2 के अंदर कुछ कैंप्स हैं उनमें बिल्कुल होता है, तो वो एक्सेस होगा तो वो लोग करेंगे। जोन 2 के कुछ कैंप्स हैं, उनको एक्सेस होगा, वो लोग उसको यूज करेंगे। और जिनको नहीं होता तो वो जोन 1 के कैंप्स को हमारे पास किसी को नहीं है एक्सेस, को नहीं करेंगे। फर्स्ट एड किट कैरी करूं? ओके, यस, शुड बी कैरी फर्स्ट। अगर आपकी कोई अपनी छोटी सी बेसिक आपने रखी हुई है तो बिल्कुल कैरी कर लें। और बाकी बिल्डिंग्स में अवेलेबल होती है। एंड अगर आपके पास कोई इस तरह की चीज है, और हमने इसको मेंशन कर दिया सर्कुलर में, आप देखें कि आप अपनी एक बेसिक किट बना लें। तो वो अगर आप समझते हैं तो अपनी एक बेसिक किट बनाएं और अपने साथ रखें, तो हर वक्त आपके पास हैंडी होगी। कैन वी टेक हैंड कैरी टू मीना? सॉरी इफ यू ऑलरेडी डिस्कस, आई हैव मिस्ड आउट। नहीं जी, हैंड कैरी आप मीना नहीं ले जा सकते, सिर्फ बैकपैक ले जा सकते हैं। टॉयलेट इन बसेस, ये जी बसेस के अंदर जो है वो टॉयलेट होता है, और इमरजेंसी यूज के लिए तो जितना कम उसको यूज करना हो तो अच्छा है, ताकि वो बसेस के बीच में होता है तो उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं यूज करने के उसको चेक कर लेगा। ऑन माई बिहाफ समवन कैन टेक 18। जी ट्राई कर लेंगे, उसको कमिट नहीं कर सकते हैं मतलब साहब कि वो आपको, क्योंकि वो जिसके शॉट्स लगेंगे उसको यूजुअली सर्टिफिकेट इशू करते हैं उस वक्त। कोई भी नॉर्मल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चलेगा, इंटरनेशनल ट्रैवल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई भी आप कर लें अपने जो आउटसाइड पाकिस्तान करना है। माय क्वेश्चन ऑन दम हैज नॉट बीन आंसर्ड येट। मैंने अगर मिस किया दम का तो आई एम सॉरी। दम जो है बेसिकली, वो क्वेश्चन मुझे नहीं पता कि किस चीज पे दम का आपने अभी पूछा है। दम के अगर कोई भी, अगर आपने किसी चीज पे भी दम के लिए अगर कुर्बानी अगर एलोकेट करनी होगी तो वो हज खत्म होगा 13 जिलहज को, 12 जिलहज को, उसके बाद आप हमारे एसपीएस को बोल सकते हैं तो वो अरेंज करवा देंगे। विच मीन्स आफ्टर 10th जून वो आपके लिए अरेंज करवा देंगे। मक्का में कोई इशू नहीं है। वो बता देंगे कितना टाइम लगेगा अरेंजमेंट के लिए, लेकिन बिफोर 10th जून 14 जिलहज उसको अरेंज नहीं कर सकते। और जिनकी हज की कुर्बानी है वो अलग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने सवाल आ रहे थे मैंने कोशिश की कि उनको कवर कर लें, एंड उन सबको कवर कर लें। और एक सवाल अच्छा मेरे सामने और आ गया वापस दम के हवाले से, तो मैं उसको पलक टूट जाने से दम होगा या नहीं होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगा पलक टूट जाने से। और अगर आपने
थोड़े बहुत बाल गिर गए, इससे भी एक दम जो है, अगर दम बेसिकली बकरे का, पूरे बकरे का दम जो है वो नहीं होगा। इसके ऊपर सदका वगैरह की क्या लिमिट है वो आई थिंक मुफ्ती साहब को ये पास ऑन कर देते हैं कि जी ये कब जाके इस पे कोई सदका एप्लीकेबल होता है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है जिसको हम वो करें। और कैन अ मैन यूज जीरो ट्रिमर फॉर हलक और मस्ट ही शेव? देखिए ये दर्जा है हज के जैसे जैसे चीजें हैं, अफजलियत है हर अमल के ऊपर, हर हमारे एक्ट के ऊपर। तो हलक के ऊपर जो है हेड शेव करना जो है ना वो सबसे अव्वल दर्जा है। उसके बाद अगर कोई जो है वो मशीन कर ले या हेयर कट कर ले तो वो उसके बाद के जो है ना दर्जे सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आता है। तो ये जितने हमारी सबकी कोशिश ये होती है कि जो सबसे, अगर हम गए हैं और हम इसी पर्पस से जा रहे हैं तो जो सबसे अच्छा और ऐसी चीज जो जिसमें सबसे ज्यादा अफजलियत हो, जिस एक्ट के अंदर, उस एक्ट के अंदर की जो एक्सट्रीम चीज हो वो हम कर लें। बट उसको करने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको करने के लिए ऐसी चीजें हो रही हो या ऐसे मामला हो रहे हो जो हमारी सेहत के लिए, हमारी जान के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो या दूसरों के लिए क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि 12 बजे से जवाल से टाइम शुरू होता है तो वो कहेंगे जी मैं सबसे अफजल टाइम पे जमरात जाके 11th को मारना चाहता हूँ। तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए 11th और 12th को। वजह उसकी सिर्फ ये है कि जी जो सबसे ज्यादा अफजल टाइम आपको लग रहा है स्टार्टिंग टाइम है, इसमें गर्मी सबसे पीक पे, रश सबसे पीक में, और सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स इसी टाइम होते। तो आपको हम जो टाइमिंग और टाइम स्लॉट हमारा वो है नहीं, जो मौलवी हमें टाइम स्लॉट दे रहे हैं हम उसके अलावा जाएंगे तो फिर एक तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी, और हमें कोई पकड़ भी ले तो वहां पे वो हमें जो है वो कार्ड भी चेक कर सकता है। तो इसीलिए यूजली नहीं हो रहा होता, लेकिन कोई भी चीज हो तो वो फिर हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें ख्याल करना चाहिए जो चीज हमें जिस तरह मिल रही हो अ, तो वो उसको हमें उस तरह कवर करके चलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू अनस। आपने शुरू में स्टार्ट किया प्रोग्राम, नदीम बशीर साहब, इमाम नदीम बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, एक दफ़ा उनका शुक्रिया। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का इंटरेस्ट लेने का शुक्रिया, आप लोगों के इतने सारे सवाल आने का। हमारा मकसद ये था कि जी जो सवाल आ रहे हैं हम उसको कम से कम कवर कर लें। इसका अलग सेशन करने की ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि इतने सारे सवाल हैं कि उनको हम नॉर्मल प्रोग्राम में करते तो ये शायद कवर नहीं हो पाते। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि जी मैक्सिमम हम जितना कवर कर सकें वो कर लें। अभी भी कुछ सवाल रह गए होंगे, फिर भी आप अपने एसपीओस को भेज सकते हैं। बहुत सारे सवाल मजीद आपके जो है अभी नहीं भेजिएगा, आप देखिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपकी कुछ लॉजिस्टिकली भी बहुत सारे सवाल होंगे, कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिवली होंगे, वो भी कवर हो रहे होंगे। तो इंशाल्लाह जब कवरेज हो जाए उसके बाद फिर बुकलेट जो आपको शेयर कर रहे हैं वो बुकलेट पढ़ लेगा। इसके बाद भी आपके सवाल रह जाएं तो मोस्ट वेलकम, आप टीम हाजिर है, वो आपके चीजों के लिए आपको इंशाल्लाह सेटिस्फाई करती रहेगी जो जो आपके सवाल आ रहे हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो है वो आपको ईमेल पे आ रही है, उनका रिकॉर्ड कैसे रखना है। एक ये सर्कुलर भी आपके पास हमने भेज दिया है कि आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन के सेट्स को कैसे बनाना है। एयरपोर्ट पे जो है वो आपसे वीजा की कॉपीज ले ली जाती हैं, तो आपके पास कम से कम 3 कॉपीज हो सेट की, वीजा की एक्स्ट्रा कॉपी रखी हुई हो, पासपोर्ट की कॉपी रखी हुई हो। ये ऑलरेडी आपको ईमेल कर दिया है, एक दफा इसको फिर रिपीट कर देंगे। आई थिंक लास्ट माई टीम के जी एक हफ्ता पहले फिर रिपीट कर दें, ताकि आप अपना जब फाइनल जो है वो बना रहे हो तो वो आपके लिए आसान हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। इस नोट के साथ हम अपना प्रोग्राम क्लोज करते हैं। एंड इंशाल्लाह 18 मई को हमारा थर्ड सेशन है। जो लोग कराची में हैं प्लीज इसको मैंडेटरी समझें, आपका प्रोग्राम है, आपने अटेंड करना है। टाइम लेके, टाइम रख के अटेंड करेगा, ताकि हमारी कोशिश ये है कि हम उसमें सब कुछ सारी कवरेज करें। थोड़ी सी वीडियोस की प्रेजेंटेशन की भी कोशिश करेंगे। और जो लोग बाहर हैं, आप संडे का दिन होगा, टाइम आपसे भी होगी रिक्वेस्ट की निकालें, और मिस कर दें तो उसको ऑनलाइन जरूर सुनें। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। हम अपना सेशन यहाँ पे इस नोट के साथ क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन।